you. Arunji, you want to start or wait for another 5 minutes? सर दो 3 मिनट वेट कर लेंगे 4:10 से शुरू करते हैं 4:07 ही होया लोकी 4:15 तक ही ज्वाइन कर देने उन्हें इधर चाह चो पी लो 4:10 तक ज्वाइन शुरू कर लेंगे इन्नी देर च की हीरिंग और निपटा देनी सी एक हियरिंग डीटीपी के नाम पे होगी सर चलो ते माफी मांग लेती है तो फिर करते हैं शुरू शुरू कर करते हैं फिर है ना अमन करते हैं स्टार्ट संजय सर, नफरा के मैटर्स इंस्टीट्यूट में होते हैं या वो उसमें भी हियरिंग होती है या डिसीजन ही देते हैं वो? नहीं, अभी हियरिंग उन्होंने शुरू नहीं करी है ऐसी, और नफरा की प्रैक्टिस अभी नहीं शुरू हुई है। ये भी इशू है वहां पे। मेरे ख्याल डिसीजंस तो आ रहे हैं उनके कोई? हाँ जी, हाँ जी, सब आ रहे हैं। पूछते हैं ये वाला पॉइंट है। सुरजीत जी, सबको म्यूट कर दोगे? बाकी सबको, अपने मेंबर्स को होस्ट को छोड़ के। कर सकते शुरू जी, सारे म्यूट हैं। अरुण सर शुरू करें? हाँ जी, प्लीज स्टार्ट। यस प्लीज। Evening everyone. Good evening. Welcome to E-Study Circle Meet. Topic for discussion for today is issue related to tax audit. I have this opportunity of introducing our worthy speaker, CA Sanjay Agarwal ji. He is a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India. He is also a law graduate. He is into practice since 1986. And he is partner in Messrs Agarwal, Sanjay and Associate. He has over 37 years of vivid experience in the field of income tax investigation, income tax appellate tribunal, tax rates, MIS advisories, management consultancies, and corporate advisory services. He is an elected Central Council member and was first elected in 2010 and then thereafter re-elected in 2013, 16, and 22. So he was also a chairman of Northern India Regional Council of Institute of Chartered Accountants of India for the year 2004 and 5. He had the opportunity of serving almost all the standing, non-standing and other committees of Central Council constituted since 2010-11 as chairman, vice chairman, and member as under. Chairman of Public Relation Committee and International Taxation Committee, Deputy Convener of Legal Directorate 2022-23. He has also chaired Research Committee, Taxation Audit Quality Review Board 2018-19, Corporate Law and Corporate Governance Committee and Direct Tax Committee 2017-18, Legal Coordination Committee and Digital Transformation and Process Reengineering Committee 2016-17, Committee on Economic, Commercial Laws and WTO 2014-15, Indirect Taxes Committee 2013-14, Public Relation Committee 2013-14, and Direct Tax Committee 2011-12, 12-13. Vice Chairman of Committees of Economic, Commercial Law, and Economic Advisory 2018-19. Has also chaired Vice Chairman of Direct Tax Committee 2015-16, Committee on Public Finance and Government Accounting 2015-16, Committee on Corporate and NPO Sector 2015-16, Expert Advisory Committee 2014-15, Committee of Information Technology 2013-14, and Audit Committee 2012-13. I welcome you, sir. Over to Ashish, sir. Thank you. Thank you, Aman. Dear members of PA, it gives me immense pleasure to welcome you all to today's study circle meeting. We have a very illustrious CA and Central Council member, Shri Sanjay Agarwal ji, who has acceded to our request to conduct this webinar on a very important and current topic, issues relating to tax audit.
As we are all struggling to complete our tax audits for our clients this month, I'm grateful to Sanjay ji, who has taken time from his extremely busy schedule to enlighten us on this topic. May I request Sanjay ji to please share his expert views with the members of DTBA? Please, Sanjay ji. Thank you. Thank you, President Bar, Ashish ji, Arun Bhai, Gagandeep, and lot of other members. I could see there are those who are here, even though the busy schedule is there. But let me tell you few things before I take my presentation. That this topic not only important for the purpose of discussion, but we need to see this, that how much reporting we have to do. President, can I request you whether I should use more English, because if you have only local participant, then I can discuss more in Hindi. Whatever you are convenient with, whatever you are comfortable with. Okay. Oh, no, because I want to know. Sometimes you have some This is participant Java from locally, Achha, sir. okay. Good. Locally. Chalo. So what I find that the guidance note which we have revised in 2022 after 2014, that has captured some of the issues when we referred it to the committee again in 2023. We find that some fine tuning is required vis-a-vis some presentation, vis-a-vis some clarification, because what happened that we have been reported that there are 143(1) adjustments जो कि डिपार्टमेंट कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स. सो मेंबर को क्या गाइडेंस देनी है, मेंबर को क्या चीज अपनी सेव करनी है, मेंबर को, क्योंकि मेरे पास जैसे अभी डिसिप्लिनरी में कोई मैटर आता है तो हम जब मेंबर को पूछते हैं कि तुमने क्या ड्यू डिलिजेंस की, तुमने क्या पेपर लिए, क्या तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट थे, तो वेरी सॉरी टू से बट एट दैट टाइम वी फाइंड दैट दोज आर नॉट देयर. And as such, we have tried to give the answers, and wherever it is possible, we have tried to clarify also. So what I would suggest here, that I take you for something, because we have good number of participants and your queries I'll try to answer. So Arunji, if you want after the changes which are more important, I will take your queries, and because my presentation itself is more than 390 slides, so clause by clause I think giving the time will not be able to complete it. So I will take the clauses whichever member wanted to have the discussion. So we can take all those clauses one by one. We'll take the clauses before I'll tell you that what specific changes we have made. Right, sir. So first of all, we have clarified one point in the guidance note is this, that the Form 3CA, 3CB and 3CD, they are the legal forms, and the utility in which we are uploading is not a legal. The form are final and the utility is subservient of the department. But the difficulty with the member is this, that they have to upload only the utility. So what we have clarified them, look, you can decide what you want to give it. The second point we have clarified about the gratuity also, that it should be certified and then we should report. There is one point which otherwise was not required to
clarify, but we found that कि उसके अंदर 143(1) की बहुत एडजस्टमेंट आ रही है। जो कंटीजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट था उसमें मेंबर्स जो हैं वो नोट्स टू अकाउंट्स की कंटीजेंट लायबिलिटी डाल रहे थे। तो हमने वहां पे एक्सप्लेन किया कि कंटीजेंट लायबिलिटी वही आपको रिपोर्ट करनी है जो कि आपकी P&L के अंदर डेबिट हो रही हैं और आप उनको एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं, ना कि नोट्स टू अकाउंट्स की जो कि P&L में ही नहीं जाती हैं क्योंकि डिपार्टमेंट उसको वहां से ले रहे हैं। इसके बाद हमने एक डेरिवेटिव के ऊपर टर्नओवर कैलकुलेट करने के अंदर क्लैरिफिकेशन की। इसके मैंने अपेंडिक्स भी डाला था, लेकिन समहाउ वो उसके अंदर हम परफेक्शन नहीं पूरी दे पाए, तो वो जो है पॉइंट जो है उसको हमने ड्राफ्ट में डाला था, फाइनल में हमने उसको निकाल लिया। However, that appendix from the draft guidance note can be taken for the purpose of understanding. So we have given the methodology how to calculate the turnover. The another changes which we have given is in the reporting of input credit, where we have said that it is not there in the form. So if you are out of these things, petroleum industry or the industry where those input credits are available, Senvet credits are available, sorry. So you should give the information. Regarding the other, you may give observation. Then our changes, which are small changes in the law, that has been covered. So these are the few things which have been made. One point I wanted to tell you here, that as a tax auditor, I am supposed to do one point is this: I need to give the information. And when I give the information, at that time, what is happening to that information, उसका डिपार्टमेंट क्या यूज कर रहा है, ये मेरे को इसके ऊपर कोई दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन एट सम टाइम इट रिक्वायर्स कि अगर मेरे इंफॉर्मेशन देने से अगर मेरा क्लाइंट डैमेज हो रहा है तो मुझे कैसे उसको ध्यान रखना है, इसको हमने थोड़ा सा अपने जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसमें कवर करने की कोशिश की। दूसरी हमको इसमें चीज करनी होती है, अलाउंस, जितना मेरा अलाउबल एक्सपेंडिचर है वो मुझे बताना है। इफ आई डू नॉट कैलकुलेट द अलाउबल, if I give the total, for example, in the case of 48(2)(b) clause, we need to give the allowance, how much it's allowable or disallowable. So if we give anything which is not read with the intention of that, then in that case, our client will come into trouble. The third is this: I have to calculate as a tax auditor disallowances. मुझे डिसअलाउंसेस क्रिएट बताने हैं, जहां पे मुझे ये बताना है कि लॉ क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं, केस लॉ क्या कहते हैं, और अगर मुझे कोई ऐसा डिस्प्यूट है मेरे और मेरे क्लाइंट में तो उसको कैसे कहाँ रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसको हम कोशिश करें। इसके अलावा मुझ पे बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं क्लॉज 44 के बारे में। क्लॉज 44 जीएसटी से रिलेटेड है। पिछली बार हम लोगों ने, बहुत लोगों ने डिस्क्लेमर दे दिए और डिपार्टमेंट उन चीजों को ठीक नहीं मानता है जहां डिस्क्लेमर है, बिकॉज देर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन रेज्ड टू अस दैट व्हाट विल बी द ऑडिट रिपोर्ट व्हिच आर वैलिड एंड व्हिच आर नॉट वैलिड. So we are supposed to see this, that if we are giving any report, it does not contain the major information, then in that case a disclaimer has to come. And the standard of auditing of the issued says that if you are reporting on a particular financials wherein you are not in a position to give an opinion, either adverse or clean, then you should not continue with that particular assignment if it is a pure disclaimer only. So
we try to give that in 44 clause also. तो हमने उसके अंदर 44 क्लॉज के अंदर जब कॉलम है, मैं आपको दिखाऊंगा अगर आप लोग कहेंगे, तो उसमें हमने ये बोला कि आप जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको हमने ये उसके अंदर बताया है कि क्या क्या इंक्लूड करना है। कॉलम नंबर 2 के अंदर कि टोटल अमाउंट कौन सा कैलकुलेट करना है, P&L वाला करना है, कैपिटल एक्सपेंस वाला करना है, क्या चीज माइनस करनी है, वो हमने एक चार्ट बनाया है जो हमने कहा आप अपने वर्किंग पेपर में। दूसरी हमने इसके अंदर ये चीज बताई क्लॉज 44 में कि आपको ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल देना है, ना कि ड्रॉप डाउन एक्सपेंडिचर जैसे एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग, परचेजेस, इनको ड्रॉप डाउन में नहीं देना है। कंसोलिडेट रिपोर्ट देनी है एंड यू हैव टू कीप द वर्किंग पेपर। जो हमने इसके अंदर और चीजें बताई कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि जीएसटी इनपुट का कितना आया, अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आपको वहां पे डिस्क्लेमर या अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है। अदरवाइज अगर पॉसिबल है तो आप उसको वहां पे दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जो है आपकी कंपोजिट स्कीम में, अब मेरा सॉफ्टवेयर ये कंपोजिट स्कीम वालों को नहीं कैप्चर कर पा रहा क्योंकि उन्होंने टैक्स इनवॉइस गलती से इशू कर दी, जबकि वो कर नहीं सकता, या उसने अपनी इनवॉइस के ऊपर मेंशन नहीं किया कि वो कंपोजिट डीलर है, उसने अपना जीएसटी नंबर दे रखा है। अब ये एक्सपेंडिचर मेरे कंपोजिशन में अगर जाने थे और मैंने नहीं दिए या मैं उनको नहीं दे पा रहा हूं, तो देन उस क्लॉज के अंदर उतना आप डिस्क्लेमर या ऑब्जर्वेशन दीजिए, बाकी आप उसको पूरी तरह क्लैरिफाई कर दें। क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आने वाले कल में हो सकता है ये टैक्स ऑडिट में कोई और चेंजेस आए। मैं कुछ एक एफर्ट्स इंस्टीट्यूट के लेवल पे कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि ये जो टैक्स ऑडिट पे कभी कभी एलिगेशन आ जाता है कि ये हम पूरी नील भर रहे हैं, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उस पर हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं और हो सकता है नियर फ्यूचर के अंदर इसके अंदर नया फॉर्मेट हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही सजेस्ट करें। अब एक दो क्लॉजेज ऐसी थी जहां पे मैंने ये बताया कि एडजस्टमेंट 143(1) की आ रही है, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है हम अपना 16D में देते हैं। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो टैक्स ऑडिट एक प्रोप्राइटरी कंसर्न की कर रहा हूं, तो उसके अंदर मैं क्या करता हूं कि उसकी जो इंटरेस्ट इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, मैं वो उस क्लॉज के अंदर डाल देता हूं, जबकि उसके अकाउंट में सिर्फ बिजनेस के कर रहा हूं, तो मैपिंग नहीं होती है और अल्टीमेटली 143(1) में एडजस्टमेंट आ जाता है। हमने यहाँ पे अपने आप को ये कहने की कोशिश करी है कि हमें 3 डॉक्यूमेंट जो है मिनिमम अपने पास होने चाहिए। पहला हमारा एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए। अगर हमारा एंगेजमेंट लेटर हमारे पास नहीं है तो इसमें हम जो है जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लीजिए रामश्याम एंड कंपनी की एक ऑडिट कर रहा हूँ, वो प्रोपराइटर है, वो मुझे अपने पर्सनल अकाउंट नहीं दिखा रहा, और मैं आपकी 80 जो है चैप्टर 6 से की 80C की ये रिपोर्ट वहां कर रहा हूँ जो कि मैंने देखी नहीं, तो मुझे कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं कोशिश करिए कि मैं अपने ऑब्जर्वेशंस में आपको समझा सकूं। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ पर्सनल एक्सपेंडिचर वाला। अब पर्सनल एक्सपेंडिचर एक कंसेप्ट ऐसी चीज है जिसके बारे के अंदर वी नीड टू आस्क द क्लाइंट, वी नीड टू चेक द रिकॉर्ड्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक केस आया, वो ये कहते हैं कि हम यहाँ से चार्टर्ड जहाज लेके और त्रिवेंद्रम तक गए और हमने वहां पे अपने लोगों को दर्शन कराया। अब 194R के अंदर आपको प्रॉब्लम आने वाली, पुराना केस है। हम वहां गए, जब हमने उनको कहा कि भी तुम लिस्ट दो, तो जो लिस्ट दी उसके अंदर उनके क्लाइंट थे, लिस्ट में उसके रिलेटिव थे, उसके अपनी वाइफ थी, तो हमने कहा भाई ये पर्सनल एक्सपेंसेस क्यों नहीं है। अब एसएससी को जब हम बात करते हैं तो एसएससी हमें उसकी एक्सप्लेनेशन देता है, तो हमें पहले अपना अपॉइंटमेंट या एंगेजमेंट लेटर से ये देखना है कि
हमें किस लिए एंगेज किया है, ऑडिट के लिए किया है, किसकी किया है, ब्रांच का किया है, किसी 4 यूनिट का किया है, टोटल का किया है, कंपनी का किया है, किस चीज का अपॉइंटमेंट किया है, उस बेसिस पे हमें अपनी वहां पे ये एक एनेक्चर में ये डिटेल डालनी चाहिए कि मेरा जो स्कोप ऑफ वर्क है वो क्या है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि हमने क्लाइंट को पूछा, तो हमने क्लाइंट को कैसे पूछा, मेल से पूछा, ओरली पूछा। तो इसमें एक दूसरा डॉक्यूमेंट जिसको हम हमेशा मांगते हैं वो है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये डॉक्यूमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम रिलाय करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हम रिलेटिव की डेफिनेशन के ऊपर जो है जाते हैं। अब मान लीजिए आशीष अग्रवाल और संजय अग्रवाल, ये 2 जने अगर हम देखें तो ये दोनों ब्रदर भी हो सकते हैं, बेटा बाप भी हो सकता है, और ये कजन भी हो सकते हैं, ये मामा भांजे भी हो सकते हैं, और ये रिलेटिव नहीं भी हो सकते हैं, ये पार्टनर भी हो सकते हैं। सो हाउ एन ऑडिटर विल कम टू नो दैट हु आर द रिलेटिव्स which are required to be reported in 48(2)(b. So इसके लिए हमने कहा कि you must take an management representation, और ये जितने भी ऑडिट क्वेरी ये वो हैं वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में अपने को ले लेनी चाहिए। और जहां जहां ऐसी चीजें हैं जो कि हमको रिलाई करनी है मैनेजमेंट के पास बिसाइड दी नॉर्मल थिंग्स, सो वी हैव टू आल्सो आस्क। जैसे कि हमने क्लॉज 4 के अंदर बताया, क्लॉज 4 कहती है कि आप ये बताइए कि आपका एसएससी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है। लेकिन जब उस क्लॉज 4 को हम पढ़ेंगे तो उसमें वो बताता है कि अगर लाइबल है, यस तो डिटेल दो। मैं ये कहता हूँ लाइबल है लेकिन उसने जीएसटी नंबर नहीं लिया, लाइबल है उसने एक्साइज की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, तो आप क्या करेंगे? तो हमने उसके अंदर क्लैरिफाई किया कि अगर लाइबल है और नंबर है तो आप दीजिए, अदरवाइज अगर आपकी रिपोर्ट जो है वो मेजर इम्पैक्ट हो रही है तो आप उस रिपोर्ट को क्वालिफाई करें, ना कि आप जो है यहाँ पे लिखें, क्योंकि यूटिलिटी मुझे किसी तरीके का कोई ऑप्शन देता ही नहीं है कि मैं जो है वहां पे कोई चीज लिख सकूं। इसी तरीके से हमने बहुत जगह जहां पे जैसे अकाउंट पे चेक वाला है उसको हमने कहा कि यूटिलिटी के अंदर कुछ लिखने को है नहीं। टीडीएस के अंदर हमने कई जगह बोला, 269 एसएस में जैसे मान लीजिए बहुत बार एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है जी कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ दिखाऊं, अगर मैं दिखा देता हूं तो प्रॉब्लम, नहीं दिखाता हूं तो प्रॉब्लम। तो हमने ये कोशिश करी कि हम आपको बताएं कि कहाँ कहाँ इन चीजों को हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये एक ओवरऑल छोटा सा अमेंडमेंट है। अब आप मुझे जैसे बताएं मैं उस हिसाब से आपकी क्वेरीज पहले लेना चाहें, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं आपको ये डिस्क्लेमर वाला और ऑब्जर्वेशन वाला थोड़ा सा बता देता हूं। उसके बाद आप जो है क्वेरीज अपनी रेज कर लें, क्योंकि क्वेरीज जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑडिट करते हुए तो हमें बहुत साल हो गए, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ काफी सीनियर लोग भी हैं। तो आप क्वेरी लेना चाहें तो कोई जो भी मॉडरेट कर रहे हैं वो एक एक करके क्वेरी ले लें, पहले मैं क्वेरीज के जवाब दे दूं, फिर मैं आप जो समय बचेगा उसमें जैसे आप कहेंगे मैं वो कर दूंगा। तो 2-3 क्वेरीज चैट बॉक्स में आई हैं, वो मैं एक दो हाँ ले जी, लेता हूँ। हाँ ले लो सर। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इन कैश एक्सीडिंग 2 lakhs इन द होल ईयर, ये लिखा है इन्होंने। मतलब आई थिंक ही वांट्स टू आस्क कि भाई उसकी अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में की है, ये वन टाइम नहीं की 2 लाख, लेकिन पूरे साल में देखिए क्लॉज 2 लाख से 31 के एक्सीड कर अंदर, रहा है। क्लॉज 31 के अंदर 2 लाख से ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन आपको ये जो है रिसीट के ऊपर भी देना है और पेमेंट के ऊपर भी देना है। कुछ एक केस लॉ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो पार्टनर है वो पार्टनर जो है एक तरीके से सेल्फ है। तो अगर आप अपने बैंक में 2 लाख जमा कराते हैं और 2 लाख आप निकाल लेते हैं तो वो जो है 269 ST को इम्पैक्ट नहीं करता है।
इसलिए अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि पार्टनर ने कैश इंट्रोड्यूस कराया एज ए कैपिटल और वो 2 लाख से ऊपर है, तो दोनों ही आप मेथड को कर सकते हैं। एक अगर आप उसको रिपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि और कोई गाइडलाइन जब से ये आया है सेक्शन, मुझे केस लॉ नहीं कोई ऐसा नजर आया जो कि आपके फेवर में है। उससे पहले के केस लॉ हैं, तो अगर आप उनको रिलाई करना चाह रहे हैं और आप उसको देना नहीं चाह रहे हैं, तो आप, ये मैं एज ए काउंसिल मेंबर नहीं, एज ए मैं आपको एज ए ब्रदर बता रहा हूँ, तो आप जो है ऑब्जर्वेशन में जरूर डालिए कि आपने किस बेसिस पे उसको नहीं डाला है, अदरवाइज ये 269 ST के अंदर इंक्लूडेबल है। ठीक है कैश सर। जी। Tax और audit कोई for tax audit for business for turnover below 1 crore. Many CAs are having different views. So I think he देखिए wants सर, to. हाँ जी, जो जिन्होंने बोला है उनको पहले तो अनम्यूट करें। योगेश्वर जी, सुरजीत अनम्यूट कर दे योगेश्वर जी। एक सेकंड में जरा एक सेकंड। सुरजीत तू भी म्यूट पर है। सुरजीत तू भी म्यूट पर है। योगेश्वर जी, सर आपने अपना अनम्यूट कर लो प्लीज। कर लिया सर। हाँ जी सर, हाँ अपनी जी। क्वेरी बोल लो कर लो। हाँ जी। सर क्वेरी तो जो सब जगह वही चल रहा है कि जो 1 करोड़ से नीचे वाले सेल्स है, वी एग्री कि दैट इज नॉट टू बी ऑडिटेड, क्योंकि अगर उसमें फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो उसको ऑडिट नहीं होना। तो सर एग्री ऑन आप दैट, जब लेकिन जब आप एग्री कर रहे हो तो फिर आप मुझसे क्या सुनना चाहते हो, बताओ, मैं वो बता सर देता हूँ। एनी ऑप्शन। नहीं, ऑप्शन देखिए क्या है, हाँ जी। क्योंकि क्लॉज 8 में चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सर्टिफाई करता है कि वो किस क्लॉज में ऑडिट कर रहा है। राइट। अगर आप कोई गलत चीज सर्टिफाई करेंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वी विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो अब मेरा ये कहना है कि आपको सिचुएशन देखनी है। अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, कभी 44 AD नहीं इस्तेमाल किया उसने और उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, तो आप कौन सी क्लॉज टिक करोगे? 4%, 6%, लॉस, प्रॉफिट, ये सब की बातें बाद में आएंगी। अगर उसने कभी यूज किया तो ये ऑडिटेबल केस नहीं है। अब ये बोलेंगे संजय जी वो बैंक वाले कह रहे हैं कि मुझे वो करना है, ऑडिट करानी है। सर, इसके लिए हमारा एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अलग से है। वो ये बताता है कि सर्टिफिकेट जो है आप सर्टिफाई, जो ऑडिटेबल स्टैट्यूटरी नहीं है उनको कैसे ऑडिट करना है, क्या रिपोर्ट देंगे। हम में से कोई स्टेट बैंक का ऑडिटर है कोई स्टेट बैंक का ऑडिटर? हैंड रेस कर दो एक बार अगर है तो। नहीं, स्टेट बैंक जो है टैक्स ऑडिट अपने ब्रांच ऑडिटर से नहीं कराता है, लेकिन वो जो है ब्रांच ऑडिटर को ये कहता है तुम मुझे ये कुछ पर्टिकुलर दे दो, TDS नहीं कटा, ये है नहीं है, वो है नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेशल पर्पस ऑडिट करिए और एंगेजमेंट लेटर में क्लाइंट से ये कहिए कि तुम मुझे 3CD के जो 44 क्लॉजेज हैं उसके ऊपर मेरे को रिपोर्ट बना दो। और आप उसकी 44 3CD फॉर्म में नहीं इशू करना, आपको सेपरेट में इशू करना है ऑडिट रिपोर्ट में एज एन एनेक्चर की भी आपने 3CD फॉर्म जैसी रिपोर्ट 44 पॉइंट में, तो मैं ये रिपोर्ट दे रहा हूँ। इसका जब यूडिन क्रिएट करेंगे तो यूडिन भी 3CD में नहीं क्रिएट करना है, 3CA में। यूडिन आपको अदर रिपोर्ट्स में करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट मुझसे एक इंफॉर्मेशन मांग रहा है, आपने कितने यूडिन 3CD के लिए इश्यू किए और कितने मेरे पास कंज्यूम हुए। तो ऐसे कौन से यूडिन क्रिएट हो गए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो फाइल नहीं हुए, लेकिन एसएससी जो है ऑडिट करा रहा है उसमें। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है दैट वी शुड नॉट डू इट। अगर कोई चीज लीगली पॉसिबल नहीं है, आप उसको अगर करेंगे देन यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। खाली इसलिए क्लाइंट कह रहा है कि आप फाइल कर दो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फाइल करते। दिस इज माय सबमिशन।
सर एक इसमें जो प्रोफेशनल्स के केस में तो ये ऑप्ट इन ऑप्ट आउट नहीं ना एप्लीकेबल है। यस, 44 ADA में अगर वो प्रोफेशनल 44 AA के अंदर कवर्ड है, सब प्रोफेशनल कवर्ड नहीं है, जो जो प्रोफेशनल 44 AA में 44 में covered डिफाइंड है, उनके लिए ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कुछ भी नहीं है। अगर आप जो है 50% से कम कर रहे हैं, है, जो नीड टू 50 ऑडिट। लाख तक है तो करनी है, नहीं तो नहीं करनी। थैंक यू। यस सर। Any other member, if any has any query, please raise your hand. सुरजीत एक बारी अनम्यूट भी कर दे अगर किसी ने करना है तो। कंबोज साहब की है सुरजीत। सर प्लीज अनम्यूट सर। हो गया सर। गाइडेंस नोट में एक क्लैरिफिकेशन आई है कि अगर कोई प्रोफेशनल इनकम के साथ साथ बिजनेस भी कर रहा है, तो जो उसकी बिजनेस की टर्नओवर है, अगर वो 1 करोड़ से ऊपर एक्सीड करती है तो ऑडिटेबल है। अगर उसकी प्रोफेशनल इनकम जो है वो स्पेसिफाइड लिमिट से बढ़कर है तो एप्लीकेबल है। दोनों अगर बिलो एप्लीकेबल लिमिट है, बट अगर टोटल करें तो एक्सीड करती हैं तो ऑडिट नहीं करना है। इज इट करेक्ट? इट इज करेक्ट। देखिए सर, अगर अब इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कंपोजिट बिजनेस है, देखिए एक प्रोफेशनल दोनों काम नहीं कर सकता है, ऐसा प्रजम्पशन होती है। लेकिन अगर दोनों काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर की क्लिनिक है, ये वहीं आएगा, आप कहाँ आना चाह रहे हो मैं आपको बता रहा हूँ। वेरी राइट सर। ठीक है जी, डॉक्टर की क्लिनिक है और आप वहां दवाइयां भी बेच रहे हैं। परफेक्ट। ठीक है जी, तो जो वो दवाइयां हैं वो बिजनेस हो जाएगा। ठीक है जी, और जो जो कंसल्टेंसी दे रहा है, योगेश्वर जी म्यूट कर लो, योगेश्वर जी। करते सर। जो कंसल्टेंसी दे रहा है वो उसकी प्रोफेशनल इनकम हो जाएगी। सर सारे लोग आप कहते हो, लेकिन कृपया करके कभी उसका चेक कर लेना। कोई भी डॉक्टर लाइसेंस ले ही नहीं सकता है दवाइयां बेचने का। एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, डॉक्टर को बेचने के लिए नहीं मिलेगा, वो किसी थर्ड पार्टी के नाम का लाइसेंस होगा, डॉक्टर के नाम परचेज बिल नहीं होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। वो किसी फर्म के नाम होंगे, उसमें उसको पार्टनर दिखाएंगे या कुछ करेंगे। तो आप प्लीज इसको ध्यान से एक बार देख लेना। लोग बाग दिखा देते हैं और बाद में परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन चलिए मैं मानता हूं कि सब कुछ ठीक है और वो डॉक्टर ही प्रोपराइटर है और डॉक्टर ही कंसल्टेंसी दे रहा है। तो इशूनेस में जो चीज बताई उसका बेस ये था कि सर ये दोनों क्लॉजेज अलग अलग हैं। जब आपको टिक करना पड़ेगा तो आपको ये बात डिसीजन देखनी है कि वो बिजनेस जो है वो आप उसको टिक करेंगे या दोनों को टिक करेंगे। अगर आप मान लीजिए दोनों को टिक करते हैं तो वो दोनों में एक्सीड होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम हो, पर प्रोफेशनल इनकम जो है बिजनेस वाली, सेल ऑफ मेडिसिन, प्रोफेशनल वाली वो 50% से कम दिखा रहा है तो आपको ऑडिट करनी पड़ जाएगी। 50 लाख से ऊपर होगा तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन 50 लाख से कम है और 50% से कम दिखा रहा है तो आपको कंपलसरी वहां ऑडिट करनी पड़ जाएगी। तब आपको ये एग्जाम्पल नहीं लगेगा। तो आपको हमने जो ये कहा, आप क्या चीज कर रहे हैं पहले वो देख लें, और अगर आप फिर भी दोनों चीजें कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे आज हमारे केस में ये पॉसिबल हो सकता है, हमने ये कह दिया डेरिवेटिव के अंदर आप बिजनेस कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिजनेस इनकम है। अब ये कोरोना में कोई चीज हमने कर दी, अब ये इस पे विचार दोबारा चल रहा है कि क्या ये परमिटेड है, ये तो बिजनेस है, प्रोफेशन है ही नहीं। तो प्रोफेशन इनकम अलग है, डेरिवेटिव की अलग है। अगर आप डेरिवेटिव को हमने परमिट कर रखा है ना एथिकली, इस टाइम स्पेकुलेशन नहीं है, तो वहां पे भी ये अराइज हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि ये गाइडेंस नोट में जो हमने दिया है ये इसीलिए दिया है
क्योंकि आप कोई थ्रेशोल्ड लिमिट किसी एक पर्टिकुलर लिम की क्रॉस नहीं कर रहे, राइट सर? अगर सर एक ही लिमिट क्रॉस हो रही है तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें फिर दोनों की ऑडिट होगी ना जी, प्रोफेशनल ऑडिट तो कंबाइंड होगी सर। कंबाइंड ही होगी ना जी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो, क्योंकि वो अब पॉसिबल नहीं है, पहले होता था, अब पॉसिबल नहीं है। ऑडिट असेसी की हो रही है, पैन की हो रही है। यस, सिर्फ आप ये एक एक्सेप्शन ले सकते हैं कि वो अपनी पर्सनल और बिजनेस दोनों को अलग अलग रख रहा है। तो यहाँ तो दोनों बिजनेस हैं, वो अलग अलग नहीं है। ऑडिट दोनों की ही करनी पड़ेगी। दोनों की ही होके कंबाइंड जाएगा, चाहे एक की लिमिट कम भी है। और टीडीएस के जो प्रोविजन है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां 1 करोड़ है। ये हाँ जी, लोग हाँ 2 करोड़ और 10 करोड़ की समझ के टीडीएस की कंप्लायंस नहीं करते हैं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, कंबोज ठीक है सर, साहब, आगे चलते हैं जी जी, आगे सर, चलते हैं। जी अपना सर, हैंड लो कर लो सर। यस सर। जी, और कोई सर आगे पॉइंट? चलते हैं, सर अभी आगे चलते हैं। सर चलिए, एक मेरी क्वेरी है सर, एक हाँ हाँ जी, बोलिए। सर जैसे एक सेसी की सेल या परचेज से छोटे छोटे बिल है सर, 10,000, 12,000, 15,000, लेकिन साल में उसकी कैश ट्रांजैक्शन एक पार्टी के साथ 2 लाख से ऊपर हो जाती है, तो कैश में पेमेंट मतलब कि 10-10, 20-20 हजार करके 2 लाख से ऊपर दे सकता है या ले सकता है सर? पहले तो बताइए, आप रिसीट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं? सर रिसीट कर रहे हैं सर। रिसीट का मतलब आप सेल कर रहे हैं। जी सर। अब देखिए, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा, क्या आपका कोई रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है? जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप वाला कैश सेल करता है, पर वो एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि भाई तुम्हारे आदमी जब आएंगे तो वो सब जो है वो तुम्हारी जो है कॉन्ट्रैक्ट में सेल है, नहीं मैं सर, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे नहीं दूंगा। है, मेरी बात, एक हौजरी मिनट की सर, ट्रेडिंग है सर, एक हौजरी मिनट, की ट्रेडिंग। एक मिनट सर, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं फिर आपसे बात। तो ये 269, 2 लाख से ऊपर वाला, ये कहता है कि अगर वो एक इवेंट है, जैसे इवेंट ये है कि आपने बैंक्वेट हॉल के अंदर शादी करी, तो वो एक इवेंट है, वो 2-2 लाख लेके छोटे छोटे करके अगर करता है तो भी कवर्ड है। अब आपका एग्जाम्पल लेते हैं, आपका एग्जाम्पल आप कह रहे हैं होजरी है, ठीक है? होजरी के अंदर मेरी दुकान पे एक आदमी आया, उसने बोला नाम चावला जी, AS चावला, मेरे से 25,000 रुपए का माल लिए चला गया। उस दिन या अगले दिन फिर आके 25,000 का ले रहे। तो इसके अंदर इन्होंने ये कहा कि अगर वो एक इवेंट नहीं है और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और एक चीज से नहीं आ रहा है, तो वो 269 ST में नहीं कवर्ड होगा। ये एक सर्कुलर के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो परचेज लेकिन के अगेंस्ट में भी ऐसा हो सकता आपके है? पास 2 लाख रुपए की एक बिलिंग कर दी और आप जो है 2,50,000 की, और आपने उसको धीरे धीरे करके 2 लाख से ऊपर ले लिया, तो वो कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो एक बिल के अगेंस्ट है, हाँ, एक एक बिल के अगेंस्ट। एक बिल नहीं है, नंबर ऑफ बिल्स हैं सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेल और परचेज दोनों में ऐसे ऐसे? देखिए, सेल के अंदर अलग है, परचेज के अंदर अलग है। परचेज के अंदर 10,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन सेम डे में नहीं हो सकती। हाँ, सेम डे में नहीं है सर, मतलब मैंने बिल ले लिया, परचेज कर लिया, 30,000 का बिल ले लिया, उसको मैंने 3 दिन या 4 दिन में पेमेंट कर दी सर उसको। हाँ, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट लेकिन सर। 2 लाख से ऊपर होगा तो नहीं कर पाएंगे आप। नहीं, एक बिल आपको 2 कर लाख से देंगे, ऊपर नहीं है। सामने वाले को परेशानी आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, छोटे छोटे बिल ही हैं सर सारे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। यस सर। हाँ सर, आगे चलते हैं जी। हाँ जी, अभी और कोई क्वेरी? नहीं तो मैं शुरू करूं अपनी और हाँ कोई? सर, प्लीज लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, मैं अब आप मुझे शेयरिंग राइट दे दें। हाँ जी सुरजीत। मिल गए। आ गई मेरी प्रेजेंटेशन? हाँ जी सर, हाँ जी, विजिबल।
अब आप लोग मुझे नजर नहीं आएंगे, कोई चीज हो तो आप बोलिएगा। ठीक है सर। चल रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। अब सर मैं ये आता हूँ 3CA में रिपोर्ट में, यहाँ पे हमको ये बताना है कि एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। ये कौन से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आप यहाँ दे रहे हैं, इसको कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है। एक तो ये क्लॉज 11 के अंदर रिपोर्ट होंगे, दूसरा इनको कैसे दिखाना है ये मैंने यहाँ बताया है। ये ऑब्जर्वेशन क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हम में से पता नहीं कितने लोग इसका यूज करते हैं, मेरे ऑफिस में तो इसका यूज पूरा होता है। हम तकरीबन 44 क्लॉज के अंदर में से हम तकरीबन 20 क्लॉजेस के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन देते हैं। ये ऑब्जर्वेशन कहाँ है, ये मेरी फॉर्मेट के अंदर ऑब्जर्वेशन होती है, और ये ऑब्जर्वेशन जो है इस तरीके से होती है। ये एक यूटिलिटी में फॉर्म है, इसके अंदर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको जब यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके का ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ड्रॉप डाउन आपको ये इसमें कुछ चीजें जो हैं ये क्वालिफिकेशन है। ये क्वालिफिकेशन इसलिए है क्योंकि इसके बाद आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे पाएंगे। जैसे आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट ही नहीं है तो आप 3CD में रिपोर्ट कैसे करेंगे। तो ये डिस्क्लेमर है, ये क्वालिफिकेशन है। अगर आप रिपोर्ट ही नहीं कर सकते, प्रॉपर है ही नहीं, एक चीज में कुछ चीजें मिस्टेक है, 100 में से 10% चीजें नहीं दे रहा है, लेकिन 100 में से 90% अगर नहीं दे रहा है, देन यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द ऑडिट। तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग ये कहते हैं काइंडली विड्रॉ फ्रॉम द असाइनमेंट। अब इसके अंदर स्टॉक रिकॉर्ड, वैल्यूएशन, ये सारे ड्रॉप डाउन है, और लास्ट वाला जो है वो अदर्स का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम इसको ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं और इसमें देते हैं। अब जैसे मैं आपको बताया था एग्जाम्पल, वो त्रिवेंद्रम ले गए जहाज। अब उसने मुझे जब पूछा तो कह रहा है जी मेरे क्लाइंट हैं, ये बिजनेस लेके आते हैं, मैं इनको लेके गया, ये भगवान में विश्वास करें ताकि मुझसे झूठ ना बोले, मेरी तरक्की के अंदर कोई रौला ना लगाए। मैंने कहा अच्छा भाई, तो ये बात बताओ ये तुम्हारे रिश्तेदार क्यों गए। कह रहे जी ये मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये तो शुक्र करो खाली मैं त्रिवेंद्रम ले गया, इनका सब खर्चा उठाया, इन्होंने मेरे से जो है वो ब्रांड एम्बेसडर वाली फीस नहीं ली। कहता है जी अमिताभ बच्चन साहब को मैं एक बार पूछा भाई कितने पैसे लोगे मेरी प्रोडक्ट को करेंगे, तो उन्होंने कहा पहले तुम प्रोडक्ट बताओ, उसकी पूरी हिस्ट्री दो, ये दो उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस कराऊंगा और उसके बाद 6-7 करोड़ रुपए लूंगा। तो जी ये तो मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं बगैर फीस के, तो इनका खर्चा क्यों नहीं अलाउ होगा। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए आप अपनी वाइफ को क्यों ले गए। कह रहे जी अगर मेरी वाइफ जाएगी तो घर में शांति रहेगी, उसको पता लग रहा है कितना काम कर रहा हूँ, ये है, इसी से तो मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। लास्ट ईयर की टर्नओवर 110 थी, उससे पिछले साल की 80 थी, इस साल देखो मैं इनको जहाज से ले गया हूँ 160 करोड़ टर्नओवर है। नाउ द थिंग इज दिस इज समथिंग फॉर विच you will not be able to give your view. So हमने इसको ये कहा क्लॉज 21 में कि ए क्लॉज में आप ये दें, in absence of clear information it is not possible for us to verify that personal expenses have been debited to P&L or not. आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं, लेकिन अगर वो कहता है कि कुछ पैसे हैं जो डेबिट हैं तो आप दे दीजिए, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ये लिख दीजिए कि नहीं। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है। इसी तरीके से 21D क्लॉज में जो है आपको ये बताना है कि आपकी पेमेंट चेक से, ड्राफ्ट से हुई है नहीं हुई है, ये इंसिडेंट पहले पास है नहीं आपके पास इंस्ट्रूमेंट। आज की डेट में ये क्लॉज इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हम जो है वो सब चीजें जो है NEFT और उससे देते हैं, तो ये इसलिए जो है इस क्लॉज में ज्यादा नहीं है। फिर भी अगर आप चेक या ड्राफ्ट से देते हैं तो ये आप यूज करें। इसी तरीके से MSMED के लिए क्लॉज 22 है। नो व्हाट क्लॉज 22 टॉक्स अबाउट कि आप ये बताइए कि कितना इंटरेस्ट आपने MSMED वालों को दिया जो कि डिलेड पेमेंट के ऊपर है, क्योंकि ये अलाउबल नहीं है, इसलिए इस क्लॉज में आपको बताना है। अब ऐसी कोई साइट अवेलेबल नहीं है, ऐसा कोई
मैकेनिज्म नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं MSMED वालों को चिट्ठी लिखूं और उनको कहूं कि साहब ये मेरे क्लाइंट हैं, ये मेरे ऑडिट जो है ऑडिटी के ये क्लाइंट हैं, इनको जो है मैं जो है वो आप मुझे बताएं कि MSMED में रजिस्टर हूं, तो आपको नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ कहा कि आपके पास पॉसिबल नहीं है वेरीफाई करने के लिए और MR में आप ले लें। लेकिन इस क्लॉज के अलावा आने वाले अगले साल के अंदर 43B के अंदर आपको ये ट्रबल आने वाली है, क्योंकि वहां अगर वो पेमेंट उन्होंने लेट दी है तो वो पेमेंट जो है वो आपकी अगर एंड ऑफ द ईयर से डिले है तो आपको वो डिसअलाउएबल हो जाएगी। तो इसलिए जो है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस क्लॉज फॉर नेक्स्ट ईयर। सो फार एज दिस ईयर इज कंसर्न, इट इज ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड। जैसे क्लॉज 4 के बारे में मैंने पहले बता दिया था कि ये इंफॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट बताएगा कहाँ रजिस्टर्ड है। आपको एक बात बताऊं, हमारे पास एक क्लाइंट था, वो क्लाइंट जो है वो मध्य प्रदेश में कहीं था। तो मध्य प्रदेश में एक एंट्री टैक्स भी होता है। मैंने पूछा तो कहते हैं हाँ जी, इसकी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। प्रोफेशनल टैक्स होता है जो कि जो है आपके इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो डिपार्टमेंट वैट और GST वाला है वो ले रहे हैं। एक सेकंड होल्ड करना। किसको याद है क्या? हैं? कब? कितने में स्पीच है? तो फिर हैं 5 बजे? नहीं तो और कोई रूम नहीं है क्या? नहीं, ये वाला रूम खाली है क्या? देखो उसको, नहीं तो खाली कराओगे, मैं वहां जाऊंगा। सॉरी ब्रदर, एक्चुअली रूम की मारामारी हो जाती है यहाँ। नेक्स्ट जो है हमने जैसे बताया क्लॉज 13D-EF 16D को, जैसे मैंने आपको बताया कि भी अंडर दिस क्लॉज दी पर्टिकुलर्स हैव बीन गिवन एज टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड। जैसे मैंने बताया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। एक हम जो है बहुत बड़े एडवोकेट है, उनका केस करते हैं। वो जो है उनकी जो है प्रोफेशनल इनकम के अलावा जो अदर सोर्सेज से इनकम है, रेंट से, इंटरेस्ट से, डिविडेंड से और चीजों से, वो इनकम उनकी प्रोफेशनल इनकम से 6 गुना है। तो वो जो है हमने यहाँ 16D में डाल दी कि भाई ये नॉट क्रेडिटेड टू P&L। अब क्या हुआ, 143(1) में एडजस्टमेंट आ गई, क्योंकि CPC का वो जो सिस्टम है वो ये नहीं देखता है कि जो वो आपने कहाँ डाली और उससे मैपिंग नहीं करता है। तो जब भी कभी आपको यहाँ कोई चीज ऐसी देनी है which you have to give, kindly give in the column which is mapped to that in the your ITR also. Similarly, clause 23 के अंदर आपने जो इंफॉर्मेशन SSC ने दी है, लिस्ट जो प्रोवाइड की है, जैसे मैंने आपको बताया था रिलेटिव की, वो आपने इस बेसिस पे दी है। क्लॉज 26A 31BA जो अभी आप लोग पूछ रहे थे, 31BB, इन सब के लिए आपको ये बताना है कि जो भी पर्सनल अकाउंट्स में कोई चीज है वो स्कोप से बाहर है। इस तरीके से 29A क्लॉज 30 फिर 34, इस तरीके से ये मैंने कुछ चीजें यहाँ दे रखी हैं जो ये मैं आपको दे दूंगा, आप इसको यूज कर लें या चेक कर लें। ये जो है टोटल जो है वो मेरा जो वेरियस क्लॉजेज हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और चीज जो ऑब्जर्वेशन या किसी क्लॉज से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो जो है वो जो है एक सेकंड नंदा। क्यों नंदा जी आए हैं? वेलकम नंदा जी। मैंने इनका कमरा तैयार रखा है। वेलकम सर, वेलकम। नमस्कार सर। Get together. Very good. Very good. My heartiest salutations to all present Happy here. to see you both together. Carry on, sir. Carry on. मैं छोटे वाले में जाऊं? मेरा 5 मिनट का ही है बस। 5 मिनट का? हमारा ज्यादा भी एक अद्धा शेर अच्छा नंदा साहब दा। नंदा जी ने एड्रेस करना है। हरीश
ये तो निकालना पड़ेगा, ये लेके आइयो एक मिनट। हेलो हेलो आ गई मेरी आवाज? हाँ जी, आ रही हाँ सर। जी, हाँ जी। पीपीटी आई कि नहीं? नहीं, पीपीटी नहीं नहीं। सर, स्क्रीन शेयर करनी होगी। एक कर, अच्छा, नहीं शो की हो ये देखो जो पक्का कुल्फी खा लो, शुगर फ्री है। एक जो सेसीज अपने स्टॉक रिकॉर्ड ही रखते हैं और उसके एक भी सेकंड, सर्टिफाई एक कर सेकंड, देते। एक सेकंड। आ गई स्क्रीन? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए सर क्या कह रहे थे? सर जो एसएससी स्टॉक रिकॉर्ड नहीं रखते, स्टॉक रजिस्टर नहीं मेंटेन करते, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन बनती है, जरा वो एक बार प्लीज। देखिए इसके अंदर, यहाँ अगर मेरी स्क्रीन आपके पास आ रही है तो इसमें ऊपर से आप जो है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देखेंगे हाँ जी, तो प्रॉपर। प्रॉपर स्टॉक्स आर नॉट मेंटेन बाय द एसएससी, ये क्वालिफिकेशन है। हाँ जी, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपका एसएससी है, अगर हमने कॉस्टिंग के अंदर एबीसी एनालिसिस पढ़ी हो तो आप उसके हिसाब से कुछ उसकी क्वांटिटेटिव बना लें, बनवा लें। मैं ये नहीं कहूंगा बना लें। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? नहीं नहीं, वो वैसे वो डॉक्टर भी आ गया तो डॉक्टर ये मिलना अपन। एक सेकंड, सुरजीत म्यूट कर दो सभी को। सुरजीत म्यूट एक कर मिनट, दिया। मेंबर्स इस बात को ध्यान रखें कि जब वो अनम्यूट कर रहे हैं तो कम से कम इमीडिएटली आपकी बात खत्म हो जाए तो म्यूट कर लें। हाँ जी सर। तो ये मैंने कुछ प्रेजेंटेशन में अपनी ऑब्जर्वेशन डाली हैं। इसी तरीके से ये 34, 30, 42, 40, इसलिए आप इसको यहाँ दे सकते हैं। सुरजीत जी, सुरजीत एक मिनट कर रहा हूँ हो सर। गया सर। नाउ सर प्लीज, ओके। अच्छा, हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, यस आ सर। रही सर। तो ये मैंने आपको एक जनरल चीज बताई। अब जो है वो मैं आपको कुछ क्लॉजेस दिखाता हूँ। और ठीक है, किसी चीज की जरूरत होती है तो बता दिया कर, ठीक है, किसी चीज की भी जरूरत हो। सुरजीत किसकी आवाज आ रही है यार? सर ये मेसी को ही है, 2 बार म्यूट किया फिर अपने आप अनम्यूट हो जाता है। चलो सर ऑल डन। म्यूट, ऑल म्यूट करो।
ऑल म्यूट करते तो सभी हो जाते स्पीकर। और फिर ऑल म्यूट कर दे, एक बार ऑल म्यूट कर देना, फिर अभी सेशन जब सर मैंने कर दिया, जिसकी आवाज आ रही थी उन्हें कर दिया, वो अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं दोबारा। कोई बात। चलिए, ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक एड्रेस आप कॉलम नंबर 2 में देंगे। अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा, क्लॉज नंबर 11। तो आपको वहां पे जाके मैं कहा सर एक सेकंड, संजय सर एक सेकंड होल्ड करें। मिस्टर बेशी, आपने इनको या तो मैं रिमूव कर दूं? हाँ रिमूव कर दो। एक बार रिमूव कर दे यार। ठीक है जी, डन सर। क्लॉज नंबर 2 है। इसके बाद आपको जो क्लॉज नंबर 2 में एड्रेस देना है, वो आपको जब आप क्लॉज नंबर 11 में आएंगे तो आपको इस आंसर को दोबारा चेक करना है, आर यू गिविंग योर करेक्ट पोजीशन और नॉट। ये एड्रेस जो है पैन वाला एड्रेस है, तो वो पैन पे वहाँ है। एक ऐसा केस है आए कि एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन वहां पे कोई भी ऑफिस नहीं। वो जो है जब लेटर जाता है तो रिसीव हो जाता है, वैसे कोई नहीं है। तो आपको क्लॉज 11 में आके वो बात करनी है। क्लॉज 8 जो है वो मैंने अभी ऑलरेडी बताया था कि उसके अंदर आपको क्या टिक करना है, इसके बारे में मैं लूंगा आपको अभी। तो क्लॉज 11 जैसे है, वो ये बताती है क्या आपको 11A बुक्स क्या रखनी है, कौन सी मेंटेन कर रहा है, कौन सी प्रेस्क्राइब्ड है, आपने कौन सी चेक करे, और जो एड्रेस है उसको आपने वेरीफाई किया या नहीं किया। ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ध्यान रखना है। अब ये जो है 11 को मैं एक बार लूंगा, इसके बाद आप लोग देखते जाइए। अगर कोई क्लॉज आपको और चाहिए तो वो मैं जो कुछ मैं ले रहा हूं वो तो मैं बता ही दूंगा। क्लॉज 16 में ऑलरेडी ले चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी इसको दोबारा ले लूंगा। इसी तरीके से ये क्लॉज 16 के बाद जो वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी वाली है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसको भी आपको देखना है। अब जो है यहाँ पे आती है, मैंने बताया इनएडमिसिबल। जो ये 40AI वाली है 21B1 के अंदर, ये इनएडमिसिबल बताती हैं, एडमिसिबल नहीं बताती हैं। इसी तरीके से जब आप 21 में से बाहर निकलेंगे तो आपको ये बताएगा कि अब आप ये बताइए कि कितना इसमें से एडमिसिबल है। जैसे इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, ये इनएडमिसिबल बताना है, हम पूरा का पूरा यहाँ दे देते हैं तो वो सब डिसअलाउ होके आ जाता है। हमने यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी में भी यहाँ मैं थोड़ा सा आपको लेना चाहूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस लैपटॉप के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मान लीजिए ये लैपटॉप जो है मेरे को जो सेलर है वो इसके साथ 3 साल की वारंटी दे रहा है। तो वो क्या करता है, वो इस 3 साल की वारंटी को वो जो है अपने यहाँ प्रोवाइड करता है, इसका एक प्रोविजन करता है। तो अब ये तो एक कंटीजेंट लायबिलिटी है, कल को खर्चा हो ना हो, इसलिए जो है इसके अंदर हमने अपने स्टैंडर्ड्स में ये कहा है कि अगर कोई आपका साइंटिफिक एक्सपेंडिचर है, जो कि आप साइंटिफिक कैलकुलेट कर रहे हैं, आपकी मैचिंग प्रिंसिपल के साथ है, उसका रेवेन्यू आपने ऑलरेडी ऑफर कर लिया, तो वो प्रोविजन नहीं है, वो आपका एक्सपेंडिचर है। लेकिन इसके लिए आपको किसी की रिपोर्ट लेनी चाहिए। जब आप किसी की रिपोर्ट लेते हैं तो उसके ऊपर आपको रिलाई करना है। अगर आप उसको रिलाई कर रहे हैं तो आपको मेंशन करना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि आपने इन एक्सपर्ट्स को यू हैव रिलाइड and you have taken that in. So you must give that in as an observation in 21G if there are certain expenditure which you have debited on provisional basis, but they are based on scientific basis. There are case law which says about it. तो ये इनएडमिसिबल है। अब 23 क्लॉज जो है पेमेंट मेड टू रिलेटिव, ये सिर्फ स्पेसिफाइड लोगों की डिटेल देनी है, इसका क्या अलाउंस है, क्या डिसअलाउंस है, ये आपको नहीं लेना इससे कोई।
इसी तरीके से ये 27A में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि अगर आप देना चाहें तो नहीं, देना चाहें तो नहीं दें, और देना चाहें तो इनपुट की आप नहीं दें, क्योंकि यूटिलिटी और फॉर्म के अंदर दोनों में बहुत फर्क है। इसके अलावा आपको ये 31B वगैरह ले लेंगे। 34A अगर आप कहेंगे तो ले लेते हैं। 44 मैं जरूर लूंगा। तो मैं आपको सबसे पहले 8 पे लेके जाता हूँ। ये 8 क्लॉज का ड्रॉप डाउन है। यहाँ वो बोलता है कि आपको टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस एक्सीड स्पेसिफाइड लिमिट। पहले ये क्या था, पहले ये जो है यहाँ पे एक्सीड 1 करोड़ था। अब इन्होंने ड्रॉप डाउन के अंदर स्पेसिफाइड लिमिट्स कर दिए। दूसरा उसने कह दिया है प्रॉफिट लोअर देन 44BB, ये नहीं था पहले। फिर ये आ गया लोअर देन डीम्ड प्रॉफिट, ये आपका 44AD का आ गया, लोअर देन दी डीम्ड प्रॉफिट E। इसी तरीके से AA में ये जो है ये आपका अब इस टाइम यहाँ पे जहाँ पे एग्रीगेट केस रिसीट एंड कैश पेमेंट ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड, तो ये 1 करोड़ से ऊपर है लेकिन उनमें कैश पेमेंट है, तो ये यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से लोअर देन दी डीम BBB, और उसके बाद थर्ड प्रोवाइजो जो स्टैट्यूटरी ऑडिट एनी अदर लॉ में हो रहा है। प्रॉफिट बिलो 44AE वाले आ गए, ADA वाले आ गए लोअर में। ये इन्होंने यहाँ पे जो है वो एक ड्रॉप डाउन बना दिया है। अब जो है आपको इसमें कवर करना है। क्लॉज 8A के अंदर जो न्यू टैक्स रिजीम वाला है वहाँ यस और नो भरना है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये रिटर्न फाइलिंग से पहले आदमी जो है इसको ऑप्ट कर सकता है, तो इसके अंदर हमें अंडरटेकिंग लेनी है उससे। अगर वो नहीं दे रहा है तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसमें नो भरें, वो रिटर्न के अंदर जाके वो यस भरेगा। अगर वो यहाँ पे अंडरटेकिंग देता है और वो बोलता है कि मैं यस करूंगा और लेटर ऑन वो नहीं करता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैं क्लॉज 11 को थोड़ा सा ले लेता हूँ। क्लॉज 11 ये कहती है कि आपको प्रेस्क्राइब्ड है बुक्स, यस या नो। तो अगर हैं तो आप उसकी लिस्ट दें। लिस्ट जो है वो 44AA में प्रेस्क्राइब है, कैश बुक, लेजर, वोचर, ये बुक्स के बारे में बताया गया है। जो बुक्स हैं वही आपको बताने, दूसरे डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं है। दूसरे डॉक्यूमेंट 11C में है। जाके 11B के अंदर आप जाएंगे तो लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एंड द एड्रेस एट विच बुक्स ऑफ अकाउंट आर केप्ट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर आपने एड्रेस वेरीफाई नहीं किया और बाद में पता लगा वो एड्रेस है ही नहीं। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे यहाँ चाइनीज कंपनियों के आए हैं जिसके अंदर मेंबर ने ये सर्टिफाई किया है कि ये बिल्डिंग है, ये एड्रेस है, ये इसमें फ्लैट नंबर है, ये आदमी जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ ऐसे ऑफिस में बैठा हूँ, और पता लग रहा है कि बाद में वो बिल्डिंग भी नहीं है, ना वो ऑफिस है, ना वो आदमी है, वो आदमी इंडिया में कभी आया ही नहीं। तो इसलिए अगर आप जो है बुक्स ऑफ अकाउंट, पहली बात तो अगर मैं ये कहूँ कि प्रैक्टिकली अगर आप मेरी बात माने, आप अपने ऑफिस में ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आपको अपने ऑफिस में करना भी है कुछ तो आई एम ऑफ द फर्म व्यू कि आपको जिस एड्रेस पे उसकी बुक्स एक्चुअली मेंटेन होती हैं वो आपको जरूर विजिट करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं देन यू आर प्लेइंग विद फायर। द थर्ड इज दिस कि अगर मेरा क्लाइंट आके कहता है कि मैं तो क्लाउड पे रख रहा हूं, कहीं से भी दुनिया में जाके एक्सेस कर लो। आज की डेट में वाउचर भी आ जाते हैं, आज की डेट में बैंक स्टेटमेंट भी क्लाउड पे मेंटेन हो सकती है, सब चीज लिंक है। अगर आप जो है टैली के अंदर वाउचर साथ में अटैच करना चाहें तो वो भी अटैच हो जाएंगे। तो अगर आप उसको क्लाउड पे कर रहे हैं तो कहाँ से एक्सेस किया, क्या किया, ये सब चीजें आप उसमें डालें। हाउएवर हमने अपने गाइडेंस नोट में इस बारे में नहीं बात करी है, ये सब मैं आपको अपने उसमें बता रहा हूँ। और लास्ट वन है कि पहले कहता है कि कौन सी प्रेस्क्राइब्ड है,
दूसरी बोलता है कौन सी मेंटेन है, और तीसरी कहता है कि कौन सी आपने एग्जामिन करी। तो ये तीन चीजें इस क्लॉज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं एक ये चीज देनी है, कोई कैपिटल एसेट अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड में ड्यूरिंग द ईयर कर लिए, इसका टैक्सेशन पे इस साल कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, इसका इम्पैक्ट आएगा बाद में, तो वो आपको यहाँ देनी है इसके अंदर, ये जरूरी है। अब 16 का एक मैंने जैसे बताया, सेक्शन 28 में कोई भी अगर चीज आ रही है और आपने P&L में नहीं क्रेडिट करी है, प्लीज नोट कि यहाँ पे ऊपर लिखा है नॉट क्रेडिट टू P&L, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से डी के अंदर एनी अदर आइटम हमने ऑफ इनकम दिखाया है, ई के अंदर मैंने कैपिटल रिसीट दिखाया है। तो कैपिटल रिसीट का आज की डेट में कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर कैपिटल रिसीट इन द नेचर ऑफ इनकम है, मान लीजिए LIC का प्रीमियम है, अगर वो कैपिटल मान रहे हो आप, तो उसको आप यहाँ दिखाओगे तो हो सकता है वहां जोड़ दें। अगर आपके 26 ईयर्स में कोई चीज नजर आ रही है, आपने P&L में क्रेडिट नहीं करी, तो वो आप आपने यहाँ रिपोर्ट दे दी, तो वो आपको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एनी अदर आइटम का मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। कैपिटल रिसीट क्या है, वो सब चीजें जो है मैंने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बताने की कोशिश करी है। ये 50C के अंदर या 43CA के अंदर बहुत बार इशू आता है कि मुझे वो क्लाइंट डिटेल नहीं दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको 11 क्लॉज में बताया था, ये आपको फिर ध्यान से दोबारा लेके जाता हूँ। 11 क्लॉज में यहाँ पे हमने ये दिया है, लास्ट लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नेचर ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एग्जामिन। यहाँ पे आप दे दें, अगर आपने इस क्लोज के अंदर ये कोई डीड ली है तो दे दें, नहीं तो आप क्लासिफाई करें कि वो आपको डीड उसने नहीं दिखाई। ये जो है यहाँ पे इसकी यूटिलिटी ये है, तो ये आपको यहाँ पे देना है कि आपकी जो उसकी डीम्ड वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल आपको डीड नहीं दिखाई और उसकी आपको सर्किल रेट या जंतरी रेट या म्युनिसिपल रेट वट एवर यू से आपको मालूम है, तो आपको यहाँ इंफॉर्मेशन देनी है कि वो वेदर वो उस पर एप्लीकेबल है या नहीं है, फोर्थ प्रोविजो, ये आपको यहाँ देना है। डेप्रिसिएशन के अंदर कोई चेंज नहीं है, खाली एक छोटा सा चेंज है कि अब हम जो है वो जो न्यू रिजीम में आपका जो आ रहे हैं उनको ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, और दूसरी बात ये कि ये वाला जो कॉलम है आपका, ये सिर्फ 21, 22 के लिए एप्लीकेबल था, अब नहीं है। ये सेक्शन अब आ गया तीसरा लिम। पहला था इंफॉर्मेशन, दूसरा था इनएडमिसिबल, और तीसरा लिम आ गया एडमिसिबल। ये क्या कहता है कि आप ये बताइए व्हाट आर द अमाउंट्स विच आर एडमिसिबल, allowable. How you have to do it? You have to see the Income Tax Act, you have to see the rules, you have to also see the guidelines, you have to also see circular, etc. So these are the things which are required to be seen, and इसके अंदर ये वाले सब सेक्शन आते हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताना है। ये अगर आप देखेंगे तो जैसे साइट रेस्टोरेशन फंड है, इसका जो है बहुत कम कई जगह होता है, लेकिन वहां पे इन्होंने बताया है कि कैसे आपको करना है कैलकुलेट। इसी तरीके से ये जो है कुछ साल आपके खत्म हो गए, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अब हम कहेंगे हटा दो, ये अब रेलेवेंट ही नहीं है।
तो ये हम अपनी नई वाली ऑडिट रिपोर्ट में जाके बोलेंगे। अब ये 21-22 की है, ये जो है आपको सारे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिए हुए। ये यूटिलिटी है कि कैसे देना है आपको। ये हमारा एक 21A का फॉर्मेट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पर्सनल एक्सपेंस कौन से हुए, क्या चीजें, आपका पेनल्टी भी आएगी अभी इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग जो है। ये इसकी कोई क्वेरी होगी तो ले लेंगे। अब जैसे यहाँ पे पेनल्टी और फाइन है, जो वायलेशन ऑफ लॉ है वो तो डिसअलाउ होना चाहिए। अगर आप यहाँ रिपोर्ट करेंगे तो वहां भी जाएगा, अगर आप नहीं देंगे। लेकिन कई ऐसी पेनल्टियां होती हैं जो आपके अपने कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि मैं आपकी ऑडिट 15 तारीख तक कर दूंगा, और अगर नहीं कर पाऊंगा तो मैं 1 लाख रुपए पेनल्टी दूंगा। तो अगर आप मुझसे पेनल्टी रिकवर कर रहे हैं तो वो जो है अदर लॉ में है, तो मेरे लिए क्या वो एक्सपेंडिचर है? यस, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर विच इज इन वायलेशन ऑफ लॉ। अभी तक तो मुझे कोई ऐसा केस नहीं मिला है जहां पे इस 21 के अंदर आपने क्लॉज 7 के अंदर डाला और आपका 143(1) में डिसअलाउंस होके आया। ये आपकी यूटिलिटी है। अब जो है चाय पिला दे। ये आपके जो 40A TDS से रिलेटेड है, नॉन रेजिडेंट अगर है तो उसका यहाँ पे देना है, आपको बताना है। यहाँ पे हमने छोटा सा एक चेंज किया है, ये 201 की जगह हमारा, और ये पैन भी जो है यूटिलिटी के अंदर आ रहा है। चाहे ये 40IA है, जो आपके नॉर्मल डिसअलाउंसेस हैं वो यहाँ पे आएंगे, ये अपने को यहाँ देंगे, और यहाँ 30% देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अरुण जी, कोई और क्लॉज हो स्पेसिफिकली तो बताएं। सर हम ठीक चल रहे हैं, आई थिंक। कितना टाइम हो रहा है? अभी तो है सर, अभी 5:20 हुआ भी है, हमारे पास 45 मिनट्स है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास कॉल आ गई मैटर अटक गया, कोई बात नहीं। आपका 40A3 के अंदर जैसे मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन बताई थी कि आपको वो ऑब्जर्वेशन देनी है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और अदर वेज भी दे दिए हैं, पहले ये नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक वे को इन्होंने यहाँ पे और डिफाइन कर दिया है कि कौन कौन से हैं। ये तो जो इन्होंने दिखाए थे रूल 6DD में, जो डिसअलाउंसेस नहीं होने, अब इन्होंने यहाँ पे और डाल दिए हैं ये वाले। ये 40A3 और 40A3A दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। ये इन्होंने यहाँ डाल दिया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम, ये सब इन्होंने यहाँ डाल दिए। यस, ये कंटीजेंट लायबिलिटी वाला 21G, इसके अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हमने ये बोला है कि विच आर नॉट डेबिटेड टू P&L, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये हमने अपना रेड में जो लिखा हुआ है ये हमने अपना चेंज किया है। इसको इसके बाद ये MSMED वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।
48(2)(b, इस 48(2)(b के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको अमाउंट देना है और इसके लिए एमआर जरूरी है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन से हैं वो हमने डिफाइन कर रखे हैं, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा और ये अपने एमआर में जरूर कवर होने चाहिए। एक्चुअली इंटरेक्शन होता रहेगा ना, तो फिर मेरे को आसानी रहेगी। ठीक है सर। अगर कोई क्वेरी है ही नहीं तो फिर फायदा नहीं ना। अब मेंबर्स, जैसे मान, ओके हाँ जी, क्वेरी रेज करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। मेंबर्स कोई क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज करें। सुजीत कंपोजर की है क्वेरी। हाँ जी, बताएं कंबोज साहब। सर ऐसा है, काफी देर से जो ये बोगस बिलिंग के काम हो रहे हैं, हाँ जी, जहाँ जीएसटी और बोगस बिलिंग है, और उसमें जो अननोन पर्संस हैं उनके नाम पे फर्में खोल के मार्केट में लोगों ने काम किया है। हाँ जी, ड्यू रिगार्ड टू ऑल माय रिस्पेक्टेड कोलीग्स, हमारे मेंबर्स ने उनके ऑडिट भी किए हैं और रिटर्नें दाखिल कर दी। असेसमेंट में किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब वो केसेस अपील में आ रहे हैं, तो हाँ जी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा। तो अपने जो मेंबर्स जिन्होंने किए हैं उनसे भी मांगे हैं, चिट्ठियां डाल के मांगे हैं, लेकिन कोई सपोर्ट मिल नहीं रही। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाना चाहिए? टैक्स ऑडिट भी कर दिया उन्होंने, है जी, लेकिन असेसमेंट हुई, वहां कोई पेश नहीं हुआ। तो सब्सटेंशियल एडिशंस होके हैवी अमाउंट्स जो है वो टैक्स डिमांड खड़ी हो गई है। देखिए काफी सर, केसेस मेरे पास आए हैं, तो जो जिनके नाम पे किए हैं वो जस्ट कोई किसी का वर्कर था, कोई ड्राइवर है, या कोई उनका छोटे मोटे कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं। देखो सर, बात ये है इस पे कि थोड़ा सा अगर गाइड कीजिए, क्या करें? देखिए, ये आज की डेट में टैक्स ऑडिट से रिलेटेड नहीं है। और दूसरी बात ये, वी आर नॉट इन फिजिकल मोड, वी आर ऑन somewhere where I'll not be able to say anything. But what we need to see this, that what is the audit evidence? आपके पास audit evidence क्या था? अगर मान लीजिए आपके पास audit evidence में मटेरियल आया ही नहीं, सेल हो गया, तो आप क्या देख सकते थे कि भाई स्टॉक इन एंट्री है या नहीं है। अगर आप उसकी कोई ट्रांसपोर्ट से आया है तो आप वो देख सकते थे। इसके अलावा आपके 2A 2B के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आप देख सकते थे। अगर वो जीएसटी रिटर्न आपको देता ही नहीं तो आपको क्या करना है, तो आपको क्वालिफाई करना है। टीडीएस रिटर्न नहीं दे रहा तो आपको क्वालिफाई करना है। तो ये चीजें कंबोज साहब, आपने जब ऑडिट करी, अब ऑडिट जिसने करी है ये उसको जब वो फंसेगा, ये कुछ होगा तो इंस्टीट्यूट उससे सब चीजें पूछेगा और अथॉरिटीज भी पूछ सकती हैं। हमारे गाइडेंस नोट के अंदर पहले इस चीज को हम कवर करते थे कि अथॉरिटीज बुला सकते हैं। अब आज की डेट में मैं ये कह रहा हूं कि बुला सकती है, उसकी पावर मुझे क्या बताने की जरूरत है। तो अगर वो बुलाएंगे तो ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल। ऑडिटर अगर मान लीजिए कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखता है या कोई चीज नहीं करता है तो इस बात के लिए जो आपका क्लाइंट है वो जिम्मेवार है ना जी, जिसने ऑडिट कराई। वो पर्पस तो सर मेरा ये क्वेरी रेज करने का यही था कि थोड़े से मेंबर्स भी ये अवेयर हो भी, अगर कोई ऐसा वो केस सर उसके लिए फिजिकल, तो विद ऑल क्वालिफिकेशन एंड विद ऑल जो है वो जरूर दें, ताकि किसी लेटर स्टेज के ऊपर किसी मेंबर को कोई दिक्कत ना आए। वो तो सर मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैंने पहले स्टार्ट ही वहीं से किया है। जी, आई हैव स्टार्टेड देयर इटसेल्फ। चलिए, और थैंक यू कोई सर। क्वेरी टैक्स से रिलेटेड, सर एक टैक्स क्वेरी है ऑडिट ये से? सीए ईशा बंसल की तरफ से। सर इन क्लॉज 8 व्हिच क्लॉज ऑफ 44 AB शुड बी सिलेक्टेड इन केस ऑफ फॉर्म 3 CA? 3CA में दोनों आपको करनी है, एक थर्ड प्रोवाइजो वाली करनी है और दूसरी थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर वाली करनी है। ओके प्रतीक, मेरा क्वेश्चन था, हाँ जी,
सर जैसे ये 44 AB में अगर 10 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है तो उसमें था कि 5% ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट से ऊपर आपकी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, तो क्या उसमें फिक्स एसेट्स अगर कैश में परचेज है वो भी इंक्लूड होंगे? देखिए सर, अगर आप ITR में जाएं और अगर आप 44 AB के प्रोवाइजो को पढ़ें तो उसके अंदर जो पेमेंट लिख रहा है वो फॉर ऑल लिख रहा है, खाली फिक्स एसेट, एक्सपेंडिचर, इवन लोन रीपेमेंट, सब चीजों के लिए। दूसरी बात, अगर आप कैश में एसेट खरीद रहे हैं तो आपको सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो वहां भी इंपैक्ट होगा आपको। तो ये पूरा लेना है 5% के लिए। पहले टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट अदर देन उसी बैंक से या उसी एसएससी के बैंक से कोई अमाउंट निकला और डिपॉजिट हुआ हो तो वो नहीं लेना है। अदरवाइज टोटल अमाउंट ऑफ विड्रॉल या टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट इज टू बी टेकन, ये है वो। थैंक यू। ठीक है ना जी सर। हाँ जी मेंबर जानिए तो क्वेरी। सर जैसे अभी ट्रस्ट या सोसाइटीज के जो ऑडिट्स की हैं सर, उसमें मेंबर्स को काफी दिक्कत आ रही है, उसके रिगार्डिंग कोई एक्सटेंशन का है सर? देखिए सर, मैं सर 10B 10BB के रिगार्डिंग सर। दोनों चीजें देखिए, हमने भी कोशिश करी है, बोल दिया है, और मैं इस पे आज मैं नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन अरुण जी की किसी बात को मैं मना नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने अरुण जी को ये कहा था कि मैं उस गाइडेंस नोट पे बैठा हुआ हूँ और मैं इसको फाइनल कर रहा हूँ, और मोस्ट लाइकली हम आपको एक उसका ड्राफ्ट जो मेरी तरफ से फाइनल होगा 15 या 16 तारीख को हम रिलीज कर देंगे मेल्स के द्वारा, और फिर आपके कमेंट्स लेके आपके लिए मोर और लेस वो फाइनल होगा। मैं उसमें लगा हुआ हूँ। अभी मैं 38 क्लॉज तक पहुंच गया था, बाकी अभी मुझे करनी है। नहीं उसका सर डेट का कुछ अभी है मैं कुछ नहीं, हमने अप्लाई कर दिया है, बाकी मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। बहुत सारे चैम्बर्स ये वो सब अप्लाई कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं इशूड की जगह ये लोग एसएससी अगर कहेंगे कि उनको इन्फॉर्मेशन देने में दिक्कत है तो फायदा है। आप लोग भी अपने लेवल पे भेजिए, अपने लेवल पे, बार की लेवल पे भेजिए आप लोग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, ओके सर। मेंबर जानिए तो क्वेरी। तो फिर आगे चलते हैं। चलिए सर संजय सर। सर एक क्वेरी है रुपिंदर जी की। हाँ बोलिए बोलिए। सर इन एसएससी एक ऑडिट के केस में क्या हुआ कि एसएससी की इन बिटवीन डेथ हो गई दिसंबर में, तो वहां पर इशू है कि उसके लीगल हेड को भी हमने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ जनवरी। अब दोनों में टर्नओवर पहले वाले में बिफोर डेथ भी 2 करोड़ के ऊपर थी, उसके बाद भी है, तो ऑडिट दोनों का अलग अलग होगा, पर इशू है कि डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगी? डेप्रिसिएशन आपको फर्स्ट वाले केस में नहीं मिलेगा। फर्स्ट वाले केस में नहीं मिलेगा। हाँ तो जी। दूसरे केस में फिर हम उसको एडिशन दिखाएंगे कि उसको ओपनिंग करेंगे सारा कुछ? ये कंटेस्टियस इशू है। वैसे तो इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं है, ठीक है जी। बट यू कैन ट्राई कि आप प्रोपोर्शनेट ले लें जो एसेट्स, हाँ, और उसमें नोट डाल दें। ये कंटेस्टियस इशू है, इसके ऊपर कोई डिसीजन मुझे नहीं मिला है, लेकिन आप 32 में देखेंगे तो उसमें प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का एक क्लॉज है। अगर ज्वाइंट ओनर हो तो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, उसके अंदर आप क्वालिफाई कर पाएंगे। मुझे केस लॉ कोई ध्यान नहीं आ रहा है। पर मतलब जो डाइड पर्सन के केस में नहीं मिलेगी डेप्रिसिएशन, वो कंफर्म है? हाँ मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन ये यू कैन ट्राई कि भी प्रोपोर्शनेट ले लें। प्रोपोर्शनेट ठीक है, थैंक यू जी। सर एक एड्रेस के रिगार्डिंग है सर, एक हाँ, सेसी बोलिए। की सर एक फैक्ट्री भी है और उसकी एक शॉप भी है सर, तो हाँ जी। ड्यूरिंग द ईयर उसने फैक्ट्री सेल कर दी है, तो क्या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हमें दोनों एड्रेस मेंशन करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द ईयर जिसमें उसने काम किया, या जो 25 दिन को अवेलेबल था उसी में? नहीं, इसमें ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है।
दोनों दिन है, आप ऑब्जर्वेशन में जाके लिख सकते हैं इस डेट से वो फैक्ट्री उसकी जो है वो सेल आउट होगी। ठीक है जी, am I हाँ जी, there? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है जी, चलिए Yes, sir. अब जो है वो हम आ जाते हैं ये 27A पे, जिसपे मैंने बताया था कि इशूड ने इसमें ये कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी का इस एक से हुआ है, इसलिए इन्हीं प्रोडक्ट्स में देना है, लेकिन आप जो है वो चाहें तो ऑब्जर्वेशन दे के दे सकते। ये इशूड का व्यू है। प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम दोनों क्रेडिट में और डेबिट में दोनों हो सकती हैं, आपको दोनों यहाँ पे देनी है। अब जो कंबोज साहब बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए कोई बिलिंग का उससे कोई एक्सपेंडिचर या इनकम क्रिएट होती है जो कि पिछले सालों को इम्पैक्ट कर रही है, 2021 में मैंने कोई चीज दिखाई और वो बाद में उसका जीएसटी वालों ने किसी ने कोई चीज पकड़ ली या वहां पे मैंने कोई डिस्क्लोजर कर दिया, तो प्रायर पीरियड आइटम के अंदर आएगा। इसमें इनकम टैक्सेबल हो जाती है और एक्सपेंडिचर अलाउबल नहीं होता है। अगर यहाँ पे आप डालेंगे एक्सपेंडिचर डेबिटेड, तो वो जो है आपके डिसअलाउ करने चाहिए आपको, अदरवाइज यूटिलिटी अपने आप कर देगी 143(1) वाली। सर एक क्वेरी है प्रायर पीरियड के लिए। हाँ जी, अगर आप प्रायर पीरियड में कोई आपको डिटेक्ट करते हो और पिछले साल जिस पीरियड को रिलेट करता है उसकी कोई प्रोसीडिंग्स खुली हुई है या कोई असेसमेंट या उसकी एपिलेट, तो वो क्लेम हम डाल सकते हैं उधर सर प्रायर पीरियड दोबारा बताइए, दोबारा क्या कह रहे हैं आप? अगर आपका प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर डिटेक्ट हो गया, क्या हो गया? प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर को डिटेक्ट हो गया, हाँ रिपोर्ट कर दिया, उस साल में तो डिसअलाउ हो जाएगा। और हाँ, उसी का अगर पिछले साल की प्रोसीडिंग्स कोई ओपन है हम्म। असेसमेंट, तो वो क्लेम उसमें डाल लेना चाहिए। देखिए सर, पहली बात तो ये कि आपकी वो रिवाइज रिटर्न का टाइम ही नहीं बचेगा। नहीं रिवाइज नहीं, वो तो एडिशनल क्लेम होगा सर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ। एडिशनल क्लेम कहाँ पे करोगे सर? दीवार से करोगे? नहीं मैं कहाँ से क्लेम करोगे? नहीं प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। 154 कर सकते हो मैक्सिमम। नहीं मैं कह रहा आपको क्लेम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप रिटर्न जो इनकम रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, तो आपको क्लेम कैसे मिलेगा? बाय वे ऑफ लेटर, अगर आप बाय वे ऑफ लेटर देना चाहें। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ऐसे केसेस में वो एंटरटेन तभी होते हैं जब सीआईटी अपील डायरेक्शन दे कि ये एक्सपेंडिचर पिछले साल में करो, तब वो अलाउ होते नहीं हैं। सर अगर ऐसे नहीं। सर हमने तो क्लेम वैसे आईपीओ सर प्रोसीडिंग के अंदर भी लिया हुआ है। सर देखो, जब तक फेसलेस नहीं था कुछ भी मैं कह नहीं सकता था। आज फेसलेस है, फेसलेस में आप ऐसा कोई क्लेम नहीं ले पाओगे जो रिटर्न ऑफ इनकम में नहीं डाला है आपने। सर एक क्वेरी है कि एक स्कूल के केस में जो फ्रेंचाइजी फी है वो स्कूल वर्किंग में नहीं आया 1 साल 1.5 साल, तो उसकी जो जो फ्रेंचाइजर था जिसने फ्रेंचाइजी दी उसने बिल रेज किया और अपनी इनकम में दिखा लिया, लेकिन हमने उसको खर्चे में नहीं डाला, डिस्प्यूट हो गया। वो 1 साल 2 साल के बाद अब 31 मार्च 23 वाले साल में 22-23 फाइनेंशियल ईयर में उसकी हमने पेमेंट करी है। इसको अब प्रायर पीरियड में अगर दिखाता है तो आपके वाली बात है, वो असेसमेंट में उसने एडजस्टमेंट करके तो डिसअलाउ कर देगा। लेकिन अगर हम उनसे ये कोई सर्टिफिकेट ले लें इट वाज बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट, तो मैं इसके ऊपर सेटल कर रहा हूँ और अब पेमेंट ले रहा हूँ, तो कैन बी इग्नोर टू, जब मैंने पास इस साल किया, एक्नॉलेज इस साल किया और मैं पेमेंट इस साल कर रहा हूँ, तो कैन आई टेक इट एज माय एक्सपेंडिचर ऑफ दिस ईयर ओनली, सर ये बड़ा और शुड आई कंटेस्टियस इशू रिपोर्ट है, इट एज प्री एक्सपेंसेस? ये कंटेस्टियस इश्यूज है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको क्रॉस आएंगी। आपने जीएसटी का इनपुट ले लिया, आपके जीएसटी में कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो आपको डिस्प्यूट जो है
कोर्ट केसेस आपके कहते हैं कि ये जो है आइटम प्रायर पीरियड नहीं है, लेकिन जो केस आप बता रहे हो इसमें क्योंकि स्कूल शुरू नहीं हुआ तो वो कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, उसका रेवेन्यू तो कभी मिल ही नहीं पाएगा। कैपिटलाइज होके आप जब बिजनेस शुरू करेंगे तब आप उसको या तो कैपिटल एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करें, ये नहीं मिल पाएगा आपको रेवेन्यू में, नहीं मेरी ओपिनियन में। थैंक यू केस सर। लॉ है, केस लॉ में आप जो मर्जी करो, क्योंकि सब तरीके के केस लॉ आ जाते हैं, सवेरे कुछ होता है शाम को कुछ हो जाता है। हाँ केस लॉ के बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा। चलिए सर, तो ओहो अच्छा, दोबारा करनी पड़ेगी शेयर। एक चलिए सर, आगे ना, तो हाँ जी सर। ये चली नहीं, चल गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अब जो है हम जो है आगे चलते हैं और क्लॉजेस की तरफ। ये 29 है, ये बताता है कि अगर शेयर जो है फेयर मार्केट वैल्यू से अगर आपने नीचे ली तो इंफॉर्मेशन इसके अंदर यहाँ पे पैन मांगता है, पूरी डिटेल मांगता है, कंसिडरेशन रिसीव मांगता है, एफएमवी मांगता है। इसके लिए आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट और जो एनी अदर आइटम है वो यहाँ होने चाहिए, ये सब ये डिटेल पूरी मांगता है। ये फॉर फीचर वाला 56 जो है सेक्शन में 9 जो है सब क्लॉज थी 56(2) की, उससे रिलेटेड है। अगर आपने यहाँ पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है, बिकॉज अगर आपके पास कोई ऐसा अमाउंट है जो कैपिटल में खड़ा हुआ है कहीं भी संडी क्रेडिटर में, वो आपके पास जब कंफर्मेशन नहीं आ रही है, आपको कंफर्मेशन अगर ले रहे हैं तो उस केस के अंदर वो यहाँ पे आएगा, अगर वो पिछले सालों से भी रिलेटेड है। करंट ईयर का भी आ सकता है, और इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज खड़ी हुई हैं तो मैनेजमेंट से ये लेना चाहिए कि वो कोई फॉरफिट तो नहीं हो गया है अमाउंट, और ये जो है जो अमाउंट फॉरफिट होता है वो यहाँ डाला जाता है। ये 56(2) कहता है इसमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जरूर लेनी चाहिए। 56(2)(10) के ऊपर ये जो है क्लियर कट है कि आपको 50,000 से ऊपर अगर कोई है, ये सीए को हमारे मेंबर को सर्टिफाई करना होता है। इसके अंदर एनी सम ऑफ मनी भी है, अदर देन मनी भी है, मूवेबल है, इमूवेबल है, सब चीजें आ गई, कोई चीज अब ऐसी नहीं है जो आपकी कवर्ड नहीं हो। तो इस सेक्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा, एक एसएससी के केस में जरूर ये सब चीजें कहीं ना कहीं आती हैं, ये मैंने डिटेल में बता रखी है। ये इंटरनेशनल टैक्स से रिलेटेड है इसलिए इसको छोड़ देता हूँ, ये भी वही है। 32 गार, ये गार की रिपोर्टिंग अब कंपलसरी हो गई है। इसके अंदर जो है आपको ये देखना है सेक्शन 96 के अंदर, यहाँ हमने कुछ एक इसकी डिस्क्लेमर भी बनाई है कि आपको कहाँ पे नहीं है, और ये जो है वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी इसमें बहुत जरूरी है। और गार जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था, ये जो है इसमें वोडाफोन से शुरू हुआ था, और इसकी पूरी हिस्ट्री है, और इसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी है जो है वो बताता है कौन सी कंडीशंस में गार इन्वोक करना चाहिए और इसके टेस्ट क्या होने चाहिए, ये हमने थोड़े डाले हैं। फिर जो है वो ये 269 एसएस है, इसका कोई क्वेरी हो तो कर दें, ये पुरानी क्लॉज है, इसमें कोई चेंज नहीं है, एक्सेप्ट ये यूटिलिटी में थोड़ा सा चेंज आया है, बाकी कोई चेंज नहीं है।
ये हमने सर्कुलर डाला है कि जो अमाउंट जो है एनबीएफसी से जो है रिसीव हो रहा है, एक इंस्टॉलमेंट या उससे ज्यादा आ जाए सिंगल, एंड ऑल द इंस्टॉलमेंट पेड shall not be aggregated for the purpose of section 269 ST। जैसे आप मेरे को पूछ रहे थे पार्टनर के लिए, तो ये एनबीएफसी को ये एग्जम्पशन है। सॉरी, ये जो है चैप्टर 6A वाले, अगर आपका कोई हो क्लाइंट का पर्सनल केस हो तो वहाँ नहीं दें, और अगर दे भी रहे हैं तो आप वहाँ पे नोट्स में लिखें कि आपने उसकी ऑडिट नहीं करी है, क्लाइंट ने जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन दी है उस तरीके से डाल दिए। 34A में कोई क्वेरी हो तो, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, अब मेरे पास जो 44 मेजर है कर लो। 44 क्लॉज है। हाँ 44 कर लो। तो प्लीज 44 एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, 44 ही क्लॉज है। देखिए 44 में इशूड क्या कह रहा है कि हमको क्या देना है, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड। तो टोटल आपको देना है। एक्सपेंडिचर का मीनिंग हमने कैपिटल और रेवेन्यू दोनों लिया है। तो यहाँ पे जो कॉलम है, ये कॉलम 2 जो है ये टोटल का है, और कॉलम 3 से लेकर और कॉलम 6 तक ये जीएसटी में रजिस्टर्ड लोगों का है। कॉलम 7 जो है वो नॉट रजिस्टर्ड है। तो हमने एक बोला है कि आप अपनी वर्किंग के अंदर इस तरीके का एक चार्ट रखें। ये चार्ट ये बताता है कितना अमाउंट P&L में डेबिट हुआ है, कैपिटल कितना आपने किया है उसको इंक्लूड कर लें, टोटल चाहे जीएसटी उस पर पेड है या नहीं है, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो यहाँ जोड़ लें, इसमें से लेस कर लें नॉन कैश चार्जेस लाइक डेप्रिसिएशन, इसके बाद उसमें से लेस कर लें जो ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड है, सिक्योरिटीज से रिलेटेड है, ये क्योंकि कवर्ड नहीं होती हैं एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में, ये मना। इसके बाद इसमें से माइनस कर लीजिए शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट, जैसे सैलरी है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, वो हमने डिटेल दी है। और ये जो बैलेंस आ रहा है ये अमाउंट, इसको आप जो है वो आपका कॉलम 2 के अंदर ये जाएगा। एक सेकंड, कॉलम 2 जो है आया स्क्रीन पे, कॉलम 2 ये स्क्रीन हाँ जी पे हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 44, तो ये कॉलम 2 में ही हमने कहा है ये वर्किंग पेपर रखिए और यहाँ पे दीजिए। फिर रिलेटिंग टू जीएसटी एग्जेम्प्ट वाले अगर आपके नहीं हैं या आपके डिटेल नहीं दे रहा है तो आप यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, वरना आपको ये बनाना है। यहाँ पे अरुण जी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जरूरी नहीं है कि आपका एसएससी जो है वो रजिस्टर्ड हो, जैसे एडवोकेट है, डॉक्टर्स हैं, उनको भी ये देनी है, वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, लेकिन उनका एक्सपेंडिचर तो इससे रिलेटेड हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पे देनी है। अब हमने इसके अंदर जो है वो ये सब गाइडलाइंस दी है कि कहाँ से क्या आना है। किसी को कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो उसको मैं बता सकता हूँ कि अदरवाइज हमने इसके अंदर शेड्यूल 3 को पूरा डिफाइन किया है कि शेड्यूल 3 में क्या आना चाहिए, वो पूरा हमने अपने गाइडेंस नोट के अंदर इसके अंदर डिटेल्स दी है।
तो ये टोटल इस टाइम मेरे पास जो है रिलेटेड ये है, और डेरिवेटिव से रिलेटेड ये टर्नओवर का लास्ट मेरा वो है कि डेरिवेटिव के अंदर हमने क्या चीज कही है। हम में से कोई डेरिवेटिव में काम करता है? कोई किसी का क्लाइंट किसी का काम हो, अब मैंने शेयरिंग स्टॉप कर दी है, नंबर ऑफ करते होंगे। ऑडिट इससे बढ़ेंगे। करता है कोई? तो करते होंगे काफी के। जो करता है तो फिर उसको अनम्यूट करो। रुपिंदर जी, हाँ जी। रुपिंदर आप रणजीरो लोग करिए। करते हैं? हाँ जी सर, करते हैं। अच्छा, ये क्लाइंट कर रहे हैं सर। जो भी है क्लाइंट कर रहे हैं। अब क्लाइंट के लिए ऑडिट के लिए हमने कहा है टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करें। हाँ जी। देखिए, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, और डेरिवेटिव में स्पेसिफिकली प्रीमियम की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। प्रीमियम में भी प्रीमियम राइटर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे ये बताइए, क्या कोई भी आदमी जो स्टॉक एक्सचेंज में डील करता है वो प्रीमियम राइटर बन सकता है? नहीं? नहीं सर। ठीक है जी। तो इसका मतलब प्रीमियम राइटर स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज है कहीं। हाँ जी बिल्कुल। तो हमने इसमें ये कहा कि इन केस ऑफ द ट्रांजेक्शन वेयर द ऑप्शन राइटर इज देयर, ठीक है जी, तो ऑप्शन राइटर को पहले मिलता है प्रीमियम, रिसीव करता है वो। अगर मैं ऑप्शन राइट करूंगा, मान लीजिए मैंने कोई ऑप्शन राइट करी ABCD कोई भी, मुझे 1.5 लाख रुपए मिला। फिजिकली वो 1.5 लाख रुपए मिलता नहीं है, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, लेकिन वो मार्जिन नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल बिजनेस में कोई बिजनेस कर रहे हो, टी शेप अकाउंट अगर बनाए, तो राइट हैंड साइड पे जो आ जाता है वो आपकी टर्नओवर होती है, सेल्स। यस सर। क्लोजिंग स्टॉक अगर छोड़ दें तो आपको ये जो प्रीमियम रिसीव हो गया ये राइट हैंड साइड पे आ गया। बिल्कुल। अब ये इवेंट हो गया जैसे ही आपने राइट किया। अब मान लीजिए इसकी एक स्ट्राइक डेट है, वैसे मुझे ये बताया गया है कि सौदे स्ट्राइक डेट तक पहुंचते ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन में सर हो जाता है। हाँ, तो ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, ऑप्शन में पहले खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर मैं स्ट्राइक डेट तक लेके जाता हूं तो मुझे ये बताया गया कि कंपलसरी डिलीवरी देनी पड़ेगी, नहीं सर, और वो तो खत्म हो जाएंगे। और मुझे उसका डिफरेंस देना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो तो डिलीवरी दो, और नहीं तो आप करो। अब हम पहले केस लेते हैं, डिलीवरी अगर आपको देनी पड़ जा रही है, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है, वो कंपलसरी डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट डे। नहीं सर, ऑप्शन तो नहीं होते। नहीं, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ मैं। डेरिवेटिव भी नहीं, इक्विटी हो जाते हैं सर डेरिवेटिव। हाँ, वो हो जाएंगे। क्या फ्यूचर वाले तो खत्म ही हो जाएगा सर, कैरी फॉरवर्ड फ्यूचर कर वाले सकते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्यूचर वाले ना फ्यूचर वाले नहीं, छोड़ दो। ऑप्शन को काल रूप है ऑप्शन सर। को आपको डिलीवरी देनी पड़ती है सर, तो वो तो जो, हाँ, पैसे देने पड़ेंगे जो भी, वो तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो अगर मान लीजिए आपकी स्ट्राइक डेट तक पहुंच गए आप, ठीक है जी, अब आपका लॉस अनलिमिटेड है, और आपका जो बायर था उसका लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। एम आई रॉन्ग और करेक्ट? ठीक है। बताइए। नहीं, ठीक है। तो जो मैंने 1.5 लाख का प्रीमियम लिया, अगर वो मेरी ट्रांजैक्शन को स्क्वायर अप करूंगा जब भी स्ट्राइक डेट पे, मान लीजिए मुझे 2 लाख रुपए देने पड़ गए उसको, तो ये तो है नहीं कि 1.5 लाख उसको पहले आ गए थे तो 2 लाख देने, तो मुझे 3.5 लाख वापस करने, 2 लाख देने तो मुझे 2 लाख देने। तो मैंने ये कहा कि अगर
आपने इसके अंदर 1.5 लाख रुपया इंक्लूड कर रखा है क्योंकि आपको पहले आ गया, तो आपका 50,000 रुपये और लॉस हो गया। ये लॉस आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा क्योंकि प्रीमियम रिसीव्ड राइट हैंड साइड पे आ चुका था। हमारे यहाँ लॉस और प्रॉफिट ये दोनों ट्रांजेक्शन अलग होगी। राइट ऑफ कर दिया, एंड हुआ, 50,000 का लॉस हो गया, 2 लाख रुपए आपकी टर्नओवर है। ये कंक्लूजन पे है। लेकिन आइडियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। आइडियल सिचुएशन में वो ऑप्शन राइट करता है और ऑप्शन परचेज भी कर लेता है, क्योंकि उसको जब लगता है कि उसका लॉस ज्यादा हो रहा है तो फटाफट उसको कर लेता है। तो लोग डिफरेंस कर लेते हैं कि मैंने ऑप्शन राइट करी 1.5 लाख की, ऑप्शन परचेज कर ली 1,30,000 की, तो मेरे 20,000 रुपए प्रॉफिट है, ये मेरी टर्नओवर है। हमने कहा नहीं भाई, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो आपने ऑप्शन राइट करी वो आपकी टर्नओवर है पूरी, जितनी आपने रिसीव करी। जब आप उसको स्क्वायर अप करते हैं तो आपका जो लॉस है या आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर वो इस 1.5 लाख से ऊपर है तब तो आप लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये हमने एक इसके अंदर चीज कही। अगर डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाती है तो आप अगर अपनी इन्वेंट्री से दे रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड से दे रहे हैं, तो आपकी टर्नओवर सेल होगी क्योंकि आप उसको डिलीवरी दे रहे हैं। बायर के लिए वो कोई डिलीवरी नहीं होगी क्योंकि वो परचेस कर रहा है। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से दे रहे हैं, जो कि आपका अपने पास इन्वेस्टमेंट है, उसमें से आप डिलीवरी दे रहे हैं, तो आपकी टर्नओवर नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शन है। ये हमने कहा है डेरिवेटिव के अंदर। अब तक लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को टर्नओवर दे रहे हैं। हमने कहा भाई ये तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम है, आप कैसे अपनी ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर कर रहे हैं, ये आपका है। फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट, मैं ना तो कह रहा हूं फाइनेंशियल अकाउंट में रिपोर्ट करो, ना मैं ये कह रहा हूं कि तुम इसको कहाँ रिपोर्ट करो। मैं ये कह रहा हूं कि टैक्स ऑडिट करनी है या नहीं करनी है, उसके लिए दिया है ये। सर, this is going to make a change in the entire working of the derivative people and also the compliances in 44A जो है वो आपके TDS वाले जो compliances है। ये टोटल मेरा जो है डेलिब्रेशन। अब किसी को कोई चीज पूछनी हो, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ जी, मेंबर्स एनी क्वेरी? बस सर, मेरी तरफ से पूरा हो गया, बाकी अब आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बताएं। सर डेरिवेटिव्स में वैसे एक ये भी मतलब क्लियर है, जैसे अगर किसी की टर्नओवर ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के सपोज करो 3 करोड़ की आ जाती है, तो उसमें क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन थ्रू बैंकिंग चैनल हुई है और देयर इज नो एक्सपेंस टू बी क्लेम, लाइक 10 करोड़ की लिमिट है वहाँ। हाँ, तो उसमें 10 करोड़ की लिमिट मानी जाएगी ना? हाँ, लेकिन कैलकुलेट कैसे करनी है वो मैंने वो बताया। एब्सोल्यूट वैल्यू तो ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हमने लॉस की, तो प्लस हो जाएगा दोनों, तो दैट इज देयर। ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले साल तक लोगों ने मेरी लैंग्वेज को मिसयूज किया। ओके, मेंबर्स एनी अदर क्वेरी? सर एक क्वेरी है जी मेरी। सर एक एसएससी था जो पहले इंडिया में था और उसका 44 एडी में रिटर्न जाता था सिंस 2020 तक। सर 21 में जब उसका स्टेटस चेंज होके नॉन रेजिडेंट हो गया तो उसकी सेल 1 करोड़ से नीचे थी और सिंपल बैलेंस शीट उसकी पीएनएल भर के उसकी रिटर्न फाइल होगी सर। जो 31 दिन 22 वाला था, जो 31 दिन 22 वाला था, उसमें सर हमने उसकी सेल 1 करोड़ से ऊपर थी, उसका ऑडिट हो गया जी। अब उसकी सेल फिर 1 करोड़ से नीचे है 23 में, तो क्या उसको सिंपल बैलेंस शीट पीएनएल भर सकते हैं सर? स्टेटस उसका नॉन रेजिडेंट ही है सर। नहीं, आपने 1 करोड़ से ऊपर ऑडिट 44 एडी का कैसे कह रहे हो इस्तेमाल करा आपने? नहीं, 44 एडी का नहीं किया सर, 44 एबीए में किया सर। जब वो इंडिया में था सर 2019 तक, तब तक तो वो 44 एडी भरता था सर। फिर सर 2021 में वो उसका रेजिडेंट स्टेटस जो चेंज होके नॉन रेजिडेंट हो गया सर, तो उसकी सिंपल बैलेंस शीट एंड पीएल भर दी सर। अभी भी नॉन रेजिडेंट है? अभी भी नॉन रेजिडेंट है सर, क्योंकि नॉन रेजिडेंट में 44 एडी जा नहीं सकता सर। हाँ जी,
तो उसका अब जैसे उसकी 1 करोड़ से नीचे सेल है 22-23 में, तो सिंपल बैलेंस शीट एंड पीएनएल जाएगा सर उसका? देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ऑडिट करनी पड़ेगी आपको। सेल तो उसकी 1 करोड़ से नीचे है सर। शायद, क्योंकि आप ये बताएं, आप बिलो 6% दिखा रहे हैं, 6% से ऊपर दिखा रहे हैं? नहीं, बिलो ही है सर, उसका प्रॉफिट तो बिलो है सर। ये डाउट वाला क्वेश्चन है, उसको ऑडिट करनी चाहिए आपको। सर नॉन रेजिडेंट में तो 44 एडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं एडी ना। नहीं है ना, एडी 4 में है, क्योंकि आप एडी में पहले थे, लेकिन अब आप एडी 4 में आ गए। मुझे चेक करना पड़ेगा। आई विल कम बैक टू यू। ओके सर, थैंक ये बिल्कुल पीकुलर सर्कमस्टांसेस है। यू। राइट सर। हाँ जी, मेंबर्स एनी अदर क्वेरी? सर भी बहुत टाइम निकाल के हमारे बीच में आए हैं, तो अगर किसी की क्वेरी है तो प्लीज जरा पूछ लें फटाफट। हाँ वो आवाज आ गई मुझे 2 बार, हाँ, अभी चल रही है। यस सर। so I think there is no other query now. So I would request our member CS Ratanji to please propose a form of vote of thanks. Ratanji. Thank you very much, Arunji. Our respected chairman, sir, and respected guest speaker today, senior members and fellow members, good evening to all. It is an immense pleasure for me, CS Ratan Janjotra, executive member of DTB Direct Tax Ludhiana. I am here before you to extend heartfelt vote of thanks on behalf of Direct Tax Bar Association for this e-study circle meet on issue relating to tax audits and surrounding success. First and foremost, I would like to express our deep appreciation to our distinguished guest speaker for the day, CA Sanjay Agarwal ji, who shared his vast knowledge and insight on the intricate subject of tax audits. Sir, your expertise and engaging presentation have undoubtedly enriched and understanding of this subject, critical area of taxation. We are truly honored to have you with us today, sir. Thank you very much, sir. I also extend our sincere thanks to all the members of District Taxation Bar Association who actively participated in today's session and made it a dynamic and enriched discussion. The questions and contribution by the members was very significant value to the event, and it reflected the commitment and enthusiasm of the association. Thanks to all the members as well. Additionally, we are grateful to all the attendees who has spared their time from their busy schedule and attended the program. And lastly, I must thanks to the study circle committee chaired by CA Arun Gupta ji, who unwavering support ensured that today's virtual event went off without a hitch. So, sir, as usual, you are doing it wonderfully, and it is once again you have contributed this event, and thanks to you and your team as well, sir. In conclusion, I express my heartfelt gratitude to each and every one of you who contributed to the success of this e-study circle meet. Your presence, participation, and support are what makes our association continue to grow. As we depart today, let us carry forward the knowledge and insight gained from this session and apply them to our professional endeavors. I thanks once again to all and would look forward continue support from the members. Thank you. Have a wonderful day. Thank you very much. You stay safe, stay healthy. Okay, goodbye. Sir, मेरी तरफ से एक बार फिर I am very thankful to Sanjay Agrawal ji. He took out the time from his. It's not that today he was busy. He's busy
since last many days, and he is working on the guidance note also, but he took out the time for our Bar Association, Ludhiana Bar Association, District Taxation Bar Association. He said that I can't say no to the Ludhiana chapter and Ludhiana Bar, Ludhiana Bar, because they are very dear to me. So I'm really thankful to sir that he has taken out precious time. We are seeing that he was busy in disciplinary committee meeting, and he came out of the meeting to address our bar. And this really speaks the volume of the respect that he gives to our bar. We are very, very thankful to you, sir, and we really respect you a lot. As a bar association also, we are very thankful to you again. Thank you, boss. May I leave now? Yeah, sir, please. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you so much. हाँ जी सर, ओके कशिश जी, Thank you, Arun ji. Thank you so much. इनफॉर्मल डिस्कशंस भी कर लो। हाँ जी सर, हाँ जी। अभी संजय जी बैठे हैं, अभी संजय जी एग्जिट होने हैं, फिर करेंगे। संजय जी का अटक गया कहीं। दस दो भाई, कोई है कोई अपडेट, एनीथिंग?